financial sectors. And today I'm honored to be moderating today's important discussion on two landmark legislative amendments set to shape the future of Islamic finance in Pakistan. And we are privileged to have with us Mr. Muhammad Islam Ahmed, a distinguished expert with over 35 years of diversified experience. As the former Senior Joint Director and Head of the Policy Division for Islamic Banking at State Bank of Pakistan, Mr. Ahmed played a pivotal role in developing Pakistan's enabling legal framework for Islamic banking, particularly addition of a separate chapter as Part 2A of Islamic banking in Banking Companies Ordinance, on which SRO Banking Companies Amendment Act 2024 has been issued on October 2024. Being head of Policy Division, he also supervised and reviewed SBT Act 1956, Financial Recovery Ordinance 2001, Microfinance Ordinance 2001, and some other proposed suitable amendments for Islamic banking. He is currently the CEO and founder of Al Nasir Solution Private Limited. His extensive expertise in Islamic banking supervision policy department and contribution in development of policies and legal frameworks makes him the ideal guest to today's topic, inshallah. So I'm thankful to Islam Saab and all the audience once again. आज के सेशन के अगर ओवरव्यू को हम डिस्कस करें तो इंशाल्लाह we will focus on two major legislative changes. First one is with the Constitution, which is 26th Amendment Act 24, specifically the amendment to Article 38 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, which mandates the elimination of riba, which is we also call the interest, by January 1st, 2028. And the second topic which we will cover would be the Banking Company Amendment Act 2024, which is focusing on the introduction of a new chapter, that is Part 2A on Islamic banking, in addition to Section 39 of the Banking Companies Ordinance 1962. So without wasting further time, I will take opportunity to start, and I will be starting from the Article 38, which is an amendment in the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, and that is about the elimination of riba. The clear mandate to eliminate riba by January 2028 holds significant implications for Pakistan's economic and financial system. तो इस्लाम साहब, इसमें मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि आप क्या समझते हैं, being the subject expert, that how will this amendment impact the regulatory landscape for Islamic banking? फर्दर मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि एडिशनल मेजर्स क्या बैंक्स को अडॉप्ट करने चाहिए टू अटेन फुल शरिया कंप्लायंस स्पेसिफिकली आफ्टर दिस चेंज. If you can also elaborate the legal challenges in reconciling Sharia principle with financial regulation, especially in context of Pakistan's existing legal framework. Thank you, Jawad. This is Muhammad Islam Ahmed. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Assalatu wassalamu alayka sayyidil anbiya wal mursalin. सबसे पहले तो I would like to congratulate all Pakistanis to introduce a separate chapter of regarding Islamic banking or financial institution in the Banking Company Ordinance, which is the ordinance or act which deals with the bank's operations and businesses. और इसके साथ साथ I would like to also appreciate and congratulate SBP team, Islamic banking team और जितने स्टेक होल्डर्स इनसाइड या आउटसाइड और दूसरे डिपार्टमेंट्स के जिन्होंने ये काफ़ी लंबा जर्नी था 4-5 इयर्स का, जिसमें हमने अपने बोर्ड स्टेट बैंक के बोर्ड की कमेटी जो कि लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिफॉर्म्स पे काम करती है, उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह
तमाम, जैसे जवाब साहब ने बताया कि बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी एक्ट हो या जितने भी लॉज हैं उस पे हमने अमेंडमेंट किया. तो रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, alhamdulillah, now we have the timeline to eliminate the riba from the economic and financial system of Pakistan till January 1st, 2028. So it will, this will actually support a federal Shariat Court decision, जिसमें भी दिसंबर 2027 तक तमाम इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल सिस्टम को we have to convert into Islamic side. Regarding development of enabling legal and regulatory framework for Islamic financial institutions, working has already been started, जो आप कहें कि continuously हुआ since 2001 से. In this regard, high profile steering committees, implementation committees on federal government level were established to promote Islamic finance in the country. Under supervision of those countries, different subcommittees, working groups have been continuously working at SBP, SECP, ICAP, and different stakeholder level. The renowned and expert Sharia scholars are also the part of this exercise and struggle. And under their advice, guidance, Sharia-related matters going to be resolved, inshallah. Similarly, if we talk about the Sharia boards and Sharia committees at regulators and individual Islamic financial institution level, so they are the important part of overall development and review exercise of financial system and are working under a well-defined regulatory Sharia governance framework. तो और ये किस तरह कवर हुआ है इसमें बैंकिंग कंपनी अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा 2024 का आया, ये आगे हम तस्करा करेंगे. जी सर, थैंक यू. जी जवाब साहब. Sir, as the Islamic banking started in 80s, we talk about the initial start, and over the time, Islamic banking related provisions were in Banking Ordinance 1962 to address the evolving needs of the Islamic banking sector. तो आप प्लीज अगर ब्रीफली हाईलाइट कर सकें कुछ सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स आपकी नजर में that were introduced prior to the recent BCO Amendment Act 2024, specifically with respect to Islamic banking. Yes, after the started of journey of Islamic banking since 1980, Banking Company Ordinance Amendment, where various amendments have been made from time to time in 1980, 1984, 85, 2002 and 2011. But it was not, it was in the parcel and in the pieces. Most important amendments at that time were related to the Section 7, which speaks about the banking business, where banks are authorized to deal and invest in participation term certificates. ये introduce किया गया term finance certificates, musharaka and mudarba certificates and such other instruments as may be approved by the SBP. Similarly, Section 26A, which is related to the type of deposits, was introduced as an amendment. The banking companies were bound to maintain. इसमें एक बहुत important चीज जो है, जो अभी भी आपको बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस में एग्जिस्टिंग में 26 है, अगर आप उसको रिव्यू करें तो बैंकिंग कंपनीज वर बाउंड टू मेंटेन सेपरेट अकाउंट फॉर प्रॉफिट लॉस. दो टाइप के उसमें अकाउंट का तस्करा किया गया है कि एक इंटरेस्ट फ्री और एक पार्टिसिपेटरी मोड पे आप PLS डिपॉजिट्स, जो आप सेविंग डिपॉजिट्स कहते हैं. लेकिन अब उस पे क्या मतलब इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हो रहा है, लेकिन एक उसकी क्लॉज है कि द बैंकिंग कंपनीज वर बाउंड टू मेंटेन सेपरेट अकाउंट्स फॉर प्रॉफिट एंड लॉस डिपॉजिट्स and investment, therefore thereof in avenues return on which does not accrue of way of interest. के अगर आप कमर्शियल बैंक कन्वेंशनल की भी साइड की बात करें, the saving deposits which are based on the profit and loss sharing basis,
तो उसको भी आप डिप्लॉय उन एवेन्यूज में नहीं कर सकते जहां से इंटरेस्ट जो है एक्रू हो रहा है या इंटरेस्ट आप वो कर रहे हैं। तो एक थोड़ी सी मैं कहूँगा ये एम्बिग्युइटी है प्रैक्टिसेस में और लॉ में। लेकिन अब ये जब ये सेपरेट चैप्टर इसी तरह सेक्शन 23(1) BB was also inserted to allow banking companies to form Sharia compliant banking in subsidy कि अगर कोई कन्वेंशनल बैंक सब्सिडी बनाएगा तो इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ शरिया ओनली। तो ये भी इंट्रोड्यूस किया गया उसी में। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 25(2)B जिसमें SBB को was empowered to prohibit the banking companies to provide loans on interest basis के स्टेट बैंक की अथॉरिटी है कि अगर वो चाहे तो बैंकों को कमर्शियल बैंक्स को और उसके अंडर में 3A के उसमें जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं उसके मैंडेट में उसके रेगुलेटरी रिजीम में सुपरवाइजरी रिजीम में तो वो उनको प्रोहिबिट कर सकता है इंटरेस्ट से। तो ये तमाम चेंजेस जो है बिफोर दिस बिल जो है वो टाइम टू टाइम मैंने कहा पार्ट एंड पार्सल के उसमें BCO में आती रही। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये अब सेपरेट चैप्टर के तौर इंट्रोड्यूस हो गया। जी हम सर जब थैंक यू सर। आई वुड रिक्वेस्ट, आई थिंक पार्टिसिपेंट का माइक टर्न ऑन हो गया था, प्लीज मेक श्योर आपके अगर माइक ऑफ रहेंगे तो सेकंड दिखेगा। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट इज with respect to BCO Amendment Act and Section 39A जो फर्स्ट सेक्शन दिया गया है इस Amendment Act में, that discuss the scope and application of Islamic banking and the expanded scope of Islamic banking under Section 39A is essential for aligning financial operations with Sharia principles. तो अहमद साहब आप इसको किस तरह से देखते हैं? स्कोप ऑफ इस्लामिक बैंकिंग अब जो इवॉल्व हुआ है विद दिस अमेंडमेंट और क्या प्रैक्टिकल अराइज हो इन इट्स एप्लीकेशन क्रॉस बच्ची मीटिंग लगी है गूगल मीट। अपने माइक्स सॉरी आप वो कर रहे हैं इस वाली मीटिंग है तो इंजीनियर्स ये ले ये क्या है? I would request अगर वो माइक फॉर द टाइम बीइंग अटेंडेंस के माइक को आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने माइक थोड़े ऑफ कर लें आप लोग प्लीज। अच्छा जवाद साहब, अगर वी लुक इनटू द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो इसके अमेंडमेंट के बाद जब स्कोप की हम बात करते हैं तो जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट इज फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक्स, इस्लामिक बैंकिंग सब्सिडीज, conventional banks having Islamic banking branches or other financial institution which comes under section 3A और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या DFIs जो कि गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 बैंक को मैंडेट दे देता है कि स्टेट बैंक हैव टू सुपरवाइज एंड रेगुलेट दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंडर सेक्शन 3A में। तो इसके बाद ये होगा क्या है, एक आपको जो इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन पे डिफाइन कर दिए थे उसको लीगल कवरेज मिल गई उस स्कोप के बाद। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो 3A में स्टेट बैंक के मैंडेट में आएंगे वो DFIs हो या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो उनको लीगल कवरेज जो है वो हो जाएगी। फर्दर इट हैज बीन क्लियरिफाइड दैट ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल टू प्रॉफिट एंड लॉस डिपॉजिट अंडर सेक्शन 26A। एक तो और आइडेंटिफाई कर दिया स्कोप में कि कन्वेंशनल का जो मैं बात कर रहा था कि PLS क्या है एंड व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट अकाउंट होल्डर्स बेस्ड ऑन द मुदारबा बेस्ड इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में उनमें क्या फर्क है। तो इस उसके स्कोप में एक तो ये क्लियरिफाई हो गया। अब IBIs आर अलाउड, एक और भी एडिशनल वो हुआ है इसमें कि IBIs इस स्कोप में आर आल्सो अलाउड टू accept money on account of restricted investment basis
रेस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट बेसिस ये होती है कि अगर आप पूरी दुनिया में इसको देखें तो बाय नेचर हम डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डिवाइड करते हैं जो हम फंड लेते हैं अदर देन शेयर होल्डर्स। डिपॉजिट्स वेयर आपका प्रिंसिपल और प्रॉफिट भी अगर किसी तरीके से दे रहे हैं तो वो गारंटीड होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट अकाउंट होल्डर्स में आपका ना प्रॉफिट गारंटीड होता है ना आपका प्रिंसिपल गारंटीड। प्रोटेक्टेड तो होता है, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द प्रोटेक्टेड एंड द गारंटीड। गारंटीड मीन है कि आप लॉस भी आपको उसका जो है बॉर्न करेंगे। तो शरिया पर्सपेक्टिव में वी कैन नॉट गारंटीड द प्रॉफिट। तो एक तो ये फर्क बिल्कुल क्लियर हो गया। और रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये है कि वो आपको इन्वेस्टर एक देता है कि मेरा आप फंड इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एरिया में डिप्लॉय करेंगे। तो एक तो स्कोप में ये एडिशन हुआ है, इससे मतलब काफी जो है वो अच्छी प्रोजेक्ट्स में आप जा सकते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में जा सकते हैं। आप मुख्तलिफ ऐसे एवेन्यूज में जा सकते हैं जहां उसके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट का वो मैंडेट आपको दे रहा है। तो आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, द प्रैक्टिस ऑफ कन्वेंशनल बैंक रिगार्डिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड सेविंग डिपॉजिट फंड्स इज इंटरेस्ट बेस्ड एवेन्यूज विल बी ए लीगल चैलेंज। जैसे मैंने कहा था कि अब इसके बाद लेकिन ये एक चैलेंज होगा कि जो कन्वेंशनल बैंक में पीएलएस डिपॉजिट्स हैं उनका लीगल वो क्या है, क्योंकि बाई कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है और इस्लामिक आइडियोलॉजी के हिसाब से कोई भी लॉ या उसकी कोई इवन ए सिंगल प्रोविजन नॉन शरिया कंप्लाइंट नहीं हो सकती। इट शुड बी एज पर होली कुरान एंड सुन्ना। तो ये एक थोड़ा सा होगा, लेकिन इसमें ये होगा कि ट्रांजिशनल पीरियड में चाहिए कि कन्वेंशनल बैंक्स को ट्रांजिशनल पीरियड में ये चाहिए कि कन्वेंशनल बैंक प्रायोरिटाइज करें कि अपने करंट अकाउंट को, क्योंकि कन्वर्ट करना आसान होता है उस प्रॉफिट का, ऐसी कोई अंडरलाइंग उसका एग्रीमेंट नहीं होता जिसको आपको कन्वर्ट मुश्किल हो। लेकिन सेविंग में ये होता है कि वहां पे मिनिमम डिपॉजिट रेट का सर्कुलर है, वो कन्वेंशनल में एप्लीकेबल है और कन्वेंशनल बैंक्स आर बाउंड टू पे ए मिनिमम रेट या इंटरेस्ट रेट कह लें टू द सेविंग डिपॉजिट्स। जबकि यही मिनिमम डिपॉजिट रेट का सर्कुलर है या इंस्ट्रक्शन है आर नॉट एप्लीकेबल टू द इस्लामिक बैंकिंग ड्यू टू द शरिया कंसर्न, बिकॉज वी कैन नॉट फिक्स द रेट in case of मुदारबा बेस्ड सेविंग अकाउंट्स और मुशारका बेस्ड सच टाइप ऑफ अकाउंट्स। तो इसमें ये होगा कि मतलब मेरी ये एक सजेशन है कि जब आप हम कन्वर्जन की तरफ जाएं तो करंट अकाउंट तो आप एक्सप्लिसिटली जो है, जो स्टेट बैंक ने प्रोसीजर दिया है कि आप नोटिस सर्व करेंगे, आप उसको मैसेज देंगे, आप उसको ईमेल करेंगे, आप उसको लेटर्स लिखेंगे, आप इंग्लिश और उर्दू अखबार में नोटिस सर्व कर देंगे, आप ब्रांच में डिस्प्ले कर देंगे। और अल्टीमेटली क्योंकि उसका प्रॉफिट रेट से या इंटरेस्ट रेट से कोई उसमें कंसर्न नहीं होता, करेक्ट कर तो वो कन्वर्ट करना। सॉरी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? चले, तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रायोरिटाइज करना चाहिए पीएलएस सेविंग अकाउंट्स को, क्योंकि उनको उनका कंसेंट लेना बहुत जरूरी है और आप उसको एक्सप्लिसिटली नहीं कर सकते। उनका इम्प्लिसिट आप उनका कंसर्न लेंगे और उसका जो स्टेट बैंक ने कन्वर्जन का तरीका बताया है उसके बाद फिर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो करंट रेगुलेशन स्टेट बैंक की आई है उसमें करंट अकाउंट का एक पूरा प्रोसीजर दे दिया गया है कि आप उसको एक्सप्लिसिटली किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, Thank you. The next section is 39B, Ishamsar. And 39B discuss the definitions. Obviously, accurate definitions are the foundation of any legal framework. And this section brings much needed clarity to the terms used in Islamic banking. यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि if you can explain that how the provided definitions will help in clearing the guidance for Islamic banking institutions. And specifically referring 39B, are there any definitions जिन पे आप सोचते हैं कि ये इन definitions को further clarify होने की ज़रूरत है? For example, considering the
Islamic Bank definition of Islamic deposit account and investment account seems quite general to me. मुझे ये काफी जनरल लगी जब मैंने इसकी डेफिनेशन को देखा। तो इस तरह का डेफिनेशन के ऊपर आप अगर हमें गाइड कर सकते इसमें एज आई मेंशन अर्लियर के डेफिनेशन में क्लियरिफाई कर दिया आपको कि पीएलएस अकाउंट्स कन्वेंशनल में क्या है और इस्लामिक डिपॉजिट्स का वर्ड इस्तेमाल किया है उसमें, और दूसरी साइड पे पीएलएस डिपॉजिट्स को इन्वेस्टमेंट अकाउंट उन्होंने कहा है। उसकी दो टाइप्स बता दी आपको कि अनरिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अनरिस्ट्रिक्टेड और पीएलएस अकाउंट में अगर आप देखें अभी भी तो दो तीन चीजें सिमिलरिटीज हैं, उसके सिमिलर फीचर्स हैं कि इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग एक तो कॉमन है, एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ देयर फंड। आई एम टॉकिंग अबाउट द अनरिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड पीएलएस अकाउंट इन कन्वेंशनल बैंक्स। और आप उसको शरिया कंप्लाइंट एवेन्यूज पे डिप्लॉय भी करेंगे प्रॉफिट गेन करने के लिए। तो इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो उसमें आपने कुछ डेफिनेशन शरिया प्रिंसिपल्स में मतलब आपने दी हैं, जिसमें हमने यूज किया है एक्सेस अनसर्टेनिटी गरर जिसे हम कहते हैं, या हम गैम्बलिंग कहते हैं, मैसर और तिमार वगैरह आता है उसमें। अच्छा कुछ लफ्ज हैं बड़े सब्जेक्टिव है, इनजस्टिस है जैसे हमारे लॉ में आया है, एक्सप्लॉइटेशन है। तो इनको अगर हम ऑब्जेक्टिवली थोड़ा सा एड्रेस कर दें तो मतलब वरना लॉ में जो है क्योंकि सब्जेक्टिविटी फिर बहुत रहेगी। तो कुछ डेफिनेशन इस तरह, बाकी तो डेफिनेशंस काफ़ी क्लियर हो गई हैं, लेकिन अगर ये जो मैंने कुछ आपसे अर्ज की अगर इसमें कोई थोड़ी सी मतलब वो आ जाए, क्योंकि ये लॉ जो अगर आप देखें तो बहुत ब्रॉडर उसमें वे में लिखा गया है। जैसे आपने कहा ना, आपने फरमाया ना कि ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट अगर देखें तो उन्होंने सिर्फ उससे कहा है शरिया कंप्लाइंट मोड्स, मतलब ये भी नहीं बताया कि पार्टिसिपेटरी मोड है। क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस देखें तो वकाला बेस्ड भी होते हैं, जो है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होते हैं, कुछ हाइब्रिड नेचर के भी होते हैं। तो इसमें इन्होंने उस इसलिए उन प्रैक्टिसेस को देखते हुए मतलब उसको ओपन और कुशन रखा है कि अगर हमारे रेगुलेशंस में थोड़ी सी गुंजाइश हो कि अगर हम उसको ब्रॉडर उसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स को किसी और मोड में मुशारका में कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर अगर आप देखें तो मुदारबा में प्रैक्टिसेस होती हैं। एक बैंक शायद मुझे कोई याद है कि वो मुशारका बेसिस पे शायद कर रहा है या उसने उसने किया था, लेकिन वो भी अब मुदारबा बेसिस पे जा रहा है, क्योंकि उसके प्रिंसिपल्स जो है वो बैंकिंग में थोड़ा एप्लीकेबिलिटी जो है उनकी शरिया प्रिंसिपल्स की, कि आपका स्लीपिंग पार्टनर है और आपका पार्टिसिपेटरी पार्टनर है। तो स्लीपिंग पार्टनर का शेयर किसी भी तरह उससे ज़्यादा नहीं हो सकता एक्टिव पार्टनर से। तो आपको पता है कि अगर हम हमें स्पेशल पूल वगैरह जब मेंटेन करते हैं और हम कॉरपोरेट के बड़े प्रोफाइल हमारे पास इन्वेस्टर आता है या डिपॉजिटर आता है तो हमें उसको हाई प्रॉफिट रेट जो है वो देना होता है। तो उसमें आपका बीइंग ए मुदारिब, आप एक्टिव पार्टनर अगर मुशारका में हो तो फिर उसका स्लीपिंग पार्टनर का नहीं हो सकता उससे कम। तो आपका इन्वेस्टर जो है अभी या डिपॉजिटर जो है, सेविंग डिपॉजिटर जो मुदारबा बेस्ड है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड है और डिस्क्रिशनरी पावर है बैंक की टोटली के उसको किन एवेन्यूज में डिप्लॉय करता है। उसकी कुछ फ्यूडिशरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है और ये जरूरी है कि उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा और शरिया कंप्लाइंट एवेन्यूज में उसे डिप्लॉय करेगा और उसको फेयर और जस्टिफाइड रिटर्न देगा। जी। थैंक यू इस्लाम साहब। द नेक्स्ट सेक्शन इन वीसीओ अमेंडमेंट एक्ट इज 39C, जो कि आउटलाइन करता है परमिजिबल बिजनेस एक्टिविटीज को फॉर इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच आर वाइटल ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू शरिया कंप्लाइंट ऑपरेशन। तो इस पे आप क्या समझते हैं कि आर देयर एनी लीगल ऑब्स्टिकल्स इन इम्प्लीमेंटिंग दीज प्रोविजंस particularly concerning the regulatory compliance? इसमें ये है कि अगर इफ वी सी द सेक्शन 7 विच द बैंकिंग बिजनेस विच डिफाइन द बैंकिंग बिजनेस,
it actually covers various types of nature of business activities where IBIs and IFIs can participate. Most of the business activities for banks were added time to time to support Islamic banking, as I already told you. कि उसमें मुदारबा और वो जो सर्टिफिकेशन पार्टिसिपेटरी सर्टिफिकेट्स वगैरह मुदारबा और मुशारका बेस्ड जो इंट्रोड्यूस हुए थे वो सब इसमें किए गए, कुछ फाइनेंसिंग के मोड इसमें अलाउ किए गए. तो अंडर सेक्शन 7 IBIs डू फाइनेंसिंग फॉर द पर्पज ऑफ. अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा मैं क्लियरिफाई करना चाह रहा हूँ कि बैंक्स, इस्लामिक बैंक्स कैन नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द ट्रेडिंग because section 9 prohibit all type of commercial banks to participate in the directly in the trading. तो हम करते क्या है, we actually फाइनेंस करते हैं हम ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए. हम फाइनेंस करते हैं रेंटल एक्टिविटीज के लिए जो इजारा बेस्ड आप कहें. हम फाइनेंस करते हैं फॉर द पार्टिसिपेटरी एक्टिविटीज के लिए. तो डायरेक्ट उन एक्टिविटीज में जैसे कुवैत फाइनेंस हाउस की एग्जाम्पल है कि कुवैत फाइनेंस हाउस का ये प्रैक्टिस थी कि वो डायरेक्टली जो है, जैसे आप टोयोटा का या सुजुकी का कोई शोरूम ओपन करना चाहें तो पाकिस्तान में बैंक्स कैन नॉट डू इट. ये इसमें डोंट की उसमें आता है कि डायरेक्टली नहीं कर सकते. बट आप अगर कोई एस्टेब्लिश करना चाहता है तो आप उसके लिए फाइनेंस कर सकते हैं, उसके पार्टनर बन सकते हैं मुख्तलिफ उसमें. तो एक तो जो डायरेक्ट फाइनेंसिंग फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग जो मैंने बताया कि जो भी शरिया कंप्लाइंट आपकी एक्टिविटीज हैं उसके लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना और डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना. तो मेरा इसमें वो है कि सेक्शन 9 को हमें आगे जाके जब हम थोड़ा इस्टेब्लिश हो जाएं इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, तो हमें जैसे कुवैत फाइनेंस हाउस ने अंडर सर्टेन रेगुलेटरी लिमिटेशंस और सुपरविजन के कैपिटल के इतने परसेंटेज आप इस सेगमेंट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसमें बड़ी रेस्ट्रिक्शन और रेगुलेटरी, अच्छा उसमें 2-3 चीजें जरूरी होती हैं कि आपके रेगुलेटर की भी टेक्निकलिटीज, उसकी कैपेसिटी जो है वो उसको रेगुलेट, उसको सुपरवाइज करने के लिए. इसी तरह बैंकिंग में अगर कोई बंदा डायरेक्टली किसी ट्रेडिंग की एक्सरसाइज में जाता है या फर्स्ट करें किसी मैन्युफैक्चरिंग उसमें जाता है तो वो वाली उसको टेक्निकल एक्सपर्टीज और उसकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसको लुक आफ्टर कर सके उस तरह. तो ये सारी स्किल सेट डेवलप हो जाए तो हमें चाहिए कि सेक्शन 9 में हम थोड़ा सा एक अंडर सर्टन लिमिटेड रेगुलेशंस हमें बैंकों को, इस्लामिक बैंक्स को अलाउ करना चाहिए टू टेक डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द ट्रेडिंग एक्टिविटीज, इन द रेंटल एक्टिविटीज या ये पार्टिसिपेटरी एक्टिविटीज. तो अभी जो हम सारे फंक्शन करते हैं वो बाय मींस ऑफ फाइनेंसिंग करते हैं. तो ये थोड़ी सी मेरी वो है इसमें सजेशन. जी. Thank you, sir, for your insight and guidance. Next section is section 39B. एंड मैं समझता हूँ ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेक्शन में डिस्कस किया है रिलेशनशिप बिटवीन इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टमर्स. Obviously, the customer relationship is fundamental to banking, and this section refines the relationship between Islamic banking institutions and their clients in accordance with the contractual relationship. So, Ahmed sir, इसमें would you please explain this section with respect to contractual relationship and how it will provide the legal protection to the banking clients under different Sharia compliant modes? Considering this that we already have Consumer Protection Act, those are prevailing in all the provinces and in ICT as well. Thank you, Jawad. It is the most important provision of the amendment because if you look into the banking ordinance or act at international level or local level, अगर आप banking company ordinance को भी आप देखें तो there is only one relationship and that relationship is the lender and borrower. कर्ज देने वाला और कर्ज लेने वाला. क्यों? क्योंकि कंसीडरेशन सारी मनी होती है, उसी को प्राइस करते हैं आप, या अगर आपको क्रेडिटर या डेटर का वो वर्ड मिलेगा तो आपकी, लेकिन जब आप जैसे ही इस्लामिक फाइनेंस पे जाते हैं तो आपकी एक्टिविटीज, आपके ऑपरेशन, बिजनेसेस चेंज हो जाते हैं. आप ट्रेड बेस्ड एक्टिविटीज में जाते हैं, आप रेंटल बेस्ड एक्टिविटीज में जाते हैं, आप पार्टिसिपेटरी बेस्ड एक्टिविटीज में जाते हैं. तो जैसे ही आप ट्रेड बेस में जाते हैं जो जस्ट लाइक ए नॉर्मल ट्रेड, क्या रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है? बायर एंड सेलर.
इसी तरह जब आप रेंटल उसमें जाते हैं या इजारा बेस्ड एक्टिविटीज में जाते हैं तो आपके लेजी और लेजोर की रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है। जब आप पार्टिसिपेशन में जाते हैं, मुदारबा या मुशारका या शिरकतुल अक्द या शिरकतुल मिल्क में, मतलब आप एक एसेट में पार्टनरशिप करते हैं या पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स में करते हैं या पूरे कंपनी के एसेट्स में करते हैं, तो वहां आपकी रिलेशनशिप इंटायरली इन तीनों जो मेन एक्टिविटीज मैंने बताई आपको, यहाँ पे बोरोअर और लेंडर की कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो जो कॉन्टेक्चुअल एग्रीमेंट्स होते हैं आपके इस्लामिक फाइनेंस में, दैट बेस्ड ऑन द ट्रेड बेस्ड एक्टिविटीज, वेयर आई मेंशन यू कि सेलर और बायर की रिलेशनशिप क्रिएट हो गई, लेजर और लेजी की क्रिएट हो गई, और पार्टनर्स की क्रिएट हो गई कि आपने इंडिविजुअल एसेट में किया है, पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स में किया है, या आप कंपनी में जस्ट लाइक शेयर होल्डर्स आप उसके वेंचर कैपिटल में आपने वो किया है। तो इस लॉ में उनको लीगल प्रोटेक्शन हो गई मुख्तलिफ स्टेजेस में, क्योंकि जब आप मुराबा करते हैं तो पहले लेग में बैंक वो कमोडिटी या गुड्स खुद खरीदता है, तो उस वक्त पूरा का पूरा रिस्क जो है वो बैंक का होता है। अच्छा, उसके बाद फिर वो एजेंट बना देता है उसको, कस्टमर को, और फिर वो आपका मुराबा एग्रीमेंट होता है, और उसके बाद वो आप रिस्क उसको ट्रांसफर कर देते हैं उसको सेल करने के बाद। तो यहाँ पे बायर सेलर क्रिएट होता है, अल्टी आखिर में आप डिफर्ड पेमेंट पे, क्योंकि वो दे रहे होते हैं, कैश पेमेंट पे भी दे सकते हैं, डिफर्ड पेमेंट पे भी देते हैं, तो डिफर्ड पेमेंट पे देते हैं, तो फिर वहां पे आप, वहां भी रेंडर बोरोवर नहीं होते, वहां फिर आप क्रेडिटर और डेटर का के आपकी एक बिजनेस एक्टिविटी शामिल हो जाती है। तो जैसे सूरह बकरा में भी मतलब यही कहा गया है कि परसेप्शन की बात की गई है वहां पे ना, कि आपको लगता है कि दोनों एक ही जैसी एक्टिविटीज हैं, लेकिन आगे जाके कहते हैं कि सूद हराम है जबकि तिजारत जो है वो ट्रेड वो हलाल है। तो एक तो ये रिलेशनशिप कवर की गई काफी बहुत अच्छे तरीके से। तो और इसी तरह अगर आप कोई बैंक और कस्टमर की जो रिलेशनशिप है वो मुदारिब की है या इन्वेस्टमेंट मैनेजर की है और रब्बुल माल की है, वो भी इसमें कवर होती है कि अगर आपकी मुदारिब की या इन्वेस्टमेंट मैनेजर की या फंड मैनेजर की नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, तो आपका फंड का सारा लॉस जो है और ये साबित हो जाए, और स्टेट बैंक इस लुक आफ्टर कर रहा है, सुपरवाइजरी कंसर्न उसमें मौजूद है कि अगर आपको ये साबित हो जाए तो फिर सारा का सारा लॉस जो है वो मुदारिब वो करेगा। तो इस तरह की रिलेशनशिप जो है वो इसमें कवर की गई है, और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट। थैंक यू फॉर द जी। गाइड। आगे जाने से पहले जिशान साहब का क्वेश्चन आया है, व्हाई बैंक कैन नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट trade directly. So I would like to share that inshallah at the end we will have a Q&A session for 10 to 15 minutes. I have noted your question और उसमें हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, अदरवाइज बीच में continuity take होगी and we are with limit of time. So we have noted your question inshallah. Thank you sir for detailed guidance. The next section is 39E, and once again this is very important area, and this section talks about the Sharia governance and इस्लामिक बैंकिंग ऑपरेशंस जो है उन्होंने स्ट्रिक्टली एडेरेंस करनी है विद इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड इस्लामिक रूल्स। और इस सेक्शन ने फर्दर स्ट्रेंथन किया है शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क को विद इन इस्लामिक बैंक। हाउएवर इस सेक्शन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रोल को तो डिस्कस किया है, बट इट डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिस्कस द रोल ऑफ शरिया बोर्ड or doesn't cover either Sharia control mechanism such as Sharia compliance and Sharia audit. Those are important, I think, with respect to overall Sharia governance. So, could you elaborate on the new governance measures introduced in this section? Additionally, what is your expert opinion on the effectiveness of these measures? Thank you, Jawad. अगर if we look into the corporate governance at the international level or local level, and the corporate governance we mainly cover board of directors role and responsibilities of board of directors and senior management, and down the line lower
ऑफिशियल्स या और जो उसके मैनेजमेंट लोअर साइड है। लेकिन जब हम वी लुक इनटू द इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या दोनों में डिफरेंस होता है? तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ शरिया गवर्नेंस, एंड शरिया गवर्नेंस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्योंकि अगर किसी भी इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत अच्छा वो करे, लेकिन उसकी शरिया गवर्नेंस पुअर हो, तो उसको रेपुटेशनल रिस्क होगा, उसको शरिया नॉन कंप्लाइंट रिस्क होगा कि उसकी इनकम उस नेग्लिजेंस या उसकी वजह से, शरिया नॉन कंप्लाइंस की वजह से शरिया नॉन कंप्लाइंट हो सकती है और चैरिटी में चली जाती है। तो yes, you are right that it does not cover Sharia board of IBIs explicitly, but if you look into the set of institutional organizational arrangement की बात हुई है, इफेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट ओवरसाइट की बात हुई है, एक्टिविटीज स्ट्रक्चर्स की बात हुई है, प्रोसेस की बात हुई है, एंड कंट्रोल्स रिगार्डिंग शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क। तो अगर आप रेगुलेशंस में पूरी दुनिया में शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क को उठा के देखें, तो implicitly what are the organs of Sharia governance? The organs of Sharia governance by IOP, IFSP and international global practices, the organs of Sharia governance are board of directors, senior management, Sharia board, internal Sharia compliance, internal Sharia audit, external Sharia audit, and Sharia compliant inspection or provision of the regulator, and also the product development on the basis of Sharia. So these are the organs of Sharia governance. Implicitly, these organs are covered in the law. How explicitly you can say not covered, but as I defined when we talk about the Sharia governance, हम कंसीडर करते हैं कि व्हाट आर द ऑर्गन्स। तो ये ऑर्गन्स में, और मैंने आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के और इस्लामिक और कन्वेंशन के पर्सपेक्टिव में बताया है, द क्या डिफरेंशिएट है। शरिया बोर्ड इज द सिग्निफिकेंट रोल क्रिएट करता है उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एक्टिविटीज में। और मैंने दूसरे ऑर्गन जो बताया, अगर आपका नॉर्मल कंप्लाइंस होगा तो देयर शुड बी ए इंटरनल शरिया कंप्लाइंस। इफ देयर इज ए नॉर्मल शरिया ऑडिट, तो देयर शुड बी ए इंटरनल शरिया ऑडिट। इसी तरह स्टेट बैंक ने पूरी दुनिया में एक्सटर्नल ऑडिट में भी आपको शरिया ऑडिट की जो है वो प्रोविजन पूरी दुनिया में रिक्वायर्ड है फंक्शन कि एक्सटर्नल ऑडिटर भी अपने साथ एक क्वालिफाइड या एज पर साइज ऑफ द बिजनेस ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन जहां वो एक्सटर्नल ऑडिट करने जा रहा है। आप भी माशाल्लाह इंटरनेशनली काम करते हैं, तो उधर भी रिक्वायरमेंट है कि देयर शुड बी ए क्वालिफाइड शरिया स्कॉलर्स एट एज पर द एफपीटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रेगुलेटर जहां। तो ये तमाम चीजें इसमें इनबिल्ट हो गई हैं। और अगर आप एसबीपी और एसईसीपी का भी शरिया गवर्नेंस उठा के देखें, तो रेगुलेशंस में ये बड़ा कंप्रिहेंसिवली जो है कवर है। और उस पर कंटिन्यूसली स्टेट बैंक तो अपने स्ट्रेटेजिक प्लान में, अगर 2028 का विजन देखें, तो शरिया गवर्नेंस इज द इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ आपका जो रूट है, आपका जो फाउंडेशन है इस्लामिक फाइनेंस की, वो शरिया गवर्नेंस है। और मैंने उसके ऑर्गन्स बता दिए कि इम्प्लिसिटली कैसे कवर है लॉ में। तो मैं ये समझता हूँ कि लॉ क्योंकि ब्रॉडर उसमें होता है, तो अब जहां जहां रेगुलेशन ने हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स डिफाइन कर दिए, जैसे आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या फर्क है दोनों में। कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर कन्वेंशनल बैंक में देखें या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में देखें या नॉर्मल कॉर्पोरेट में देखें, तो वो दे वर्क फॉर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स ओनली, कि शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड या वॉट एवर दैट। लेकिन यहाँ पे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे इस्लामिक के, तो देयर इज ए फ्यूडिशरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट होल्डर्स फंड। ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होल्डर फंड ने आपको अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्क्रिशनरी पावर दी है, तो वहां आपके मुदारिब के रोल में आप उसके अमीन भी हो जाते हैं, उसके जामिन भी हो जाते हैं, उसके अजीर भी हो जाते हैं, उसके पार्टनर भी होते हैं, उसके एजेंट भी होते हैं। और ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इनबिल्ट है आपके कैरेक्टर्स में कि अगर इन
इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज से प्रूव हो गया, रेगुलेटरी या सुपरवाइजरी उसमें। तो मैंने कहा आपसे कि सारा का सारा लॉस जो है वो इन्वेस्टर को नहीं जाएगा। अगर एक्चुअल बिजनेस रिस्क नहीं है कि आपने प्रूडेंटली शरिया कंप्लाइंट वे में इन्वेस्ट किया था और उसके बाद लॉस हो गया, तो दैट लॉस विल बी शेयर प्रोपोर्शनेट टू देयर इन्वेस्टमेंट। Otherwise, in case of negligence, ignorance, or breach of contract, that loss should be borne by the investment वो to the मुदारिब और बैंक। जी जवाब आई थिंक। Thank you for sharing. जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जवाब नेक्स्ट। Uh, Next section is 39F. This section talks about the priority of payment. In times of financial distress, this section outlines payment prioritization to protect stakeholders. This section mentions that SPT will prepare a guideline for prioritizing payment to deposit account holders and other claimants. आप इस अमेंडमेंट को कैसे देखते हैं यहाँ पर? Because priority payment to depositors were already covered under Section 58 of this ordinance and Deposit Protection Corporation Act 2016. Further, will this section ensure fairness in payment hierarchy aligning with Islamic Sharia principles? जी इसमें आई ऑलरेडी मेंशन दैट के कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप की हम जब बात कर रहे थे तो डिफरेंट रिलेशनशिप होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें अगर करंट अकाउंट है तो प्योरली कर्ज बेसिस पे होता है। तो कर्ज बेसिस की शरिया कंसर्न नॉर्मल कोर्स में भी वही एप्लीकेबल है कि अगर आप एक आम इंसान जो है अगर कर्ज किसी से लेता है तो आपका जो इनहेरिटेंस डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बाद में होगी। फर्स्ट he or she has to pay the obligations और liabilities, या जो उसके ऊपर पेबल है वो पहले पे करेगा। इसी तरह जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट होल्डर्स को देखते हैं तो वो एक सर्टेन पूल में इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक सर्टेन पूल ऑफ एसेट्स में वो करते हैं। तो उनकी लाइबिलिटी क्या है इन केस ऑफ बिजनेसेस के प्रोपोर्शनेट टू देयर इन्वेस्टमेंट वो लॉस बॉर्न करेंगे, पूरे बैंक का लॉस बॉर्न नहीं करेंगे। इसकी एग्जाम्पल इस तरह है कि फर्स्ट करें कोई बैंक आईबीआई है और उसको टोटल लॉस हो गया 10 बिलियन का, लेकिन उस पूल ऑफ एसेट्स पे जिसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट अनरिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का पैसा लगा हुआ था उसमें 2 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है। तो 2 बिलियन का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट होल्डर्स में। और वो लॉस जो अगर ओवरऑल बैंक का हुआ है क्योंकि उसमें उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं है, वो कौन बॉर्न करेंगे? शेयर होल्डर्स करेंगे अपने कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप की वजह से। तो इस्लामिक बैंक्स में ये केस टू केस बेसिस पे बहुत चेंज होता है, तो इसलिए इस प्रोविजन में ये डेलीगेट कर दी अथॉरिटी उन्होंने कि स्टेट बैंक जो है इसको जो है मतलब प्रिपेयर करेगा और उसको वो करेगा। अगर कोई बैंक फेल्योर होने के उसमें लिक्विडेशन में अगर जाएगा तो जो इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट है उसका शरिया कमेटी है स्टेट बैंक की, वो केस टू केस बेसिस पे जो है ये प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स को, क्योंकि बीसीओ में तो अगर हायरार्की देखें तो उसमें मतलब वो डिफरेंट हायरार्की है। और मैंने जो आपको कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप बताई कि अगर पूल ऑफ एसेट्स में है तो उसकी और कर्ज की बिल्कुल डिफरेंट है। शेयर होल्डर्स की प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स में वैसे भी लास्ट में ही जाती है। तो इस वजह से कुछ शरिया कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप होने की वजह से इसको थोड़ा सा उससे डिफरेंट रखा गया है और ये डेलीगेट की गई है अथॉरिटी स्टेट बैंक को। जी Thank you, Islam. The charity, which is a distinctive feature of Islamic finance, has been introduced in the and BCO Amendment Act. And it is mentioned that where late payment by customer is charged with a penalty, the term penalty is used alongside charity in this section as well. What are the key considerations regarding the use of charity funds under this regulation as specified by SBT? क्योंकि इसमें मैं गालबन देख रहा था कि इससे तो चैरिटी के रेफरेंस से भी स्टेट बैंक को प्रोरोगेटिव दिया गया है कि स्टेट बैंक में directly may or even may maybe in future could define the institution
इस पे आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन आप दीजिए। हेलो इरफान साहब, आर यू देयर सर? आई थिंक आपका माइक इज ऑन म्यूट। जी जी सर, इट वाज टर्न्ड ऑन और वंस अगेन माइक म्यूट पे चला गया। जी सॉरी, अगर हम इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देखें तो अ, अगर वहाँ लेट पेमेंट आप करते हैं या आपकी इनकम जो है शरिया नॉन कंप्लाइंट हो जाती है, तो दोनों सूरतों में वो इनकम जो है पार्ट नहीं बन सकती इस्लामिक या बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का किसी भी तरह। कन्वेंशनल बैंक में आपकी जैसी भी इनकम हो, दैट इज द पार्ट ऑफ योर इनकम। तो इस चैरिटी को जैसे लोग कहते हैं, तो एक तो ये हुआ कि इससे जो एम्बिग्युइटी थी लॉ में आने के बाद, कि ये अगर आप चैरिटी इम्पोज नहीं की जाती, वो खुद कस्टमर ये एक कमिटमेंट करता है कि अगर मैंने लेट पेमेंट की तो मैं ये चार्जेस आपको लेट पेमेंट चार्जेस दूंगा। अब ये क्योंकि रीप्राइसिंग का पार्ट नहीं है, तो इसलिए ये शरिया कहती है कि पार्ट ऑफ चैरिटी है। इसी तरह अगर आपकी कोई ऐसी एक्टिविटीज जिसकी वजह से आपकी इनकम शरिया नॉन कंप्लाइंट हो गई, तो वो भी पार्ट ऑफ चैरिटी है। तो स्टेट बैंक की रेगुलेशंस तो मौजूद थी। इसी तरह अगर फाइनेंशियल रिकवरी ऑर्डिनेंस में आप ऑब्लिगेशंस की डेफिनेशन देखें, तो वहां भी वो कहता है कि वो उसकी ऑब्लिगेशंस नहीं है। अच्छा, इससे क्या होगा अगर नहीं हो, फर्ज करें जैसे अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये क्यों रखा है इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में। तो ये जवाब भाई आप भी जानते हैं, अगर पाकिस्तानी बोरोवर्स का आप एटीट्यूड देखें, और अगर इस तरह की चीजें नहीं हो तो विलफुल डिफॉल्ट भी करते हैं, पैसा होने के बावजूद भी पेमेंट नहीं करते। तो यहाँ पे शरिया बिल्कुल कंसिडर करती है केस टू केस बेसिस पे, अगर बाकी बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं है और उसको कोई ऐसी फाइनेंशियल जो है कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं और प्रॉब्लम्स हैं, तो उस सिलसिले में चैरिटी भी उसकी जो है वो मतलब एक तरह से वो की जा सकती है। तो पार्ट ऑफ लॉ होने के बाद एक जो एम्बिग्युइटी थी और रेगुलेशंस को कवरेज मिल गई कि मतलब इस पे एतराज होता था। इसी तरह रिकवरी इसके बाद ये भी होगा कि रिकवरी ऑर्डिनेंस में बैंक अब उसके ऑब्लिगेशंस में भी ये डाल सकता है, अगर आउटस्टैंड करना है, लेट पेमेंट की खास तौर पे बात कर रहा हूँ। और शरिया नॉन कंप्लाइंट इनकम तो बिल्कुल क्लियर है कि वो चैरिटी में चली जाती है। उसकी यूज की, उसकी यूटिलाइजेशन की भी स्टेट बैंक ने रेगुलेशंस दी हैं कि वो उसको किस तरह यूटिलाइज करेगा, और बहुत मतलब कंप्रीहेंसिव उससे उसको मॉनिटर किया जाता है। तो इस क्लॉज का एक ये फायदा होगा प्रोविजन का, कि आपको लीगल कवरेज मिल गई, और चैरिटी की जो एम्बिग्युइटी डेफिनेशन की और मुख्तलिफ उसकी ट्रीटमेंट की थी, वो तमाम चीज़ें जो है वो रिजॉल्व हो गई। जी थैंक यू सर। द नेक्स्ट सेक्शन इज 39A, and this section emphasizes the need for distinct regulations for Islamic banks. Asanta, could you explain how the introduction of the separate regulations enhance the governance of Islamic banking institutions, especially in the light of existing regulations issued by Islamic Banking Division of the State Bank? Additionally, what potential legal challenges do you foresee those may arise from this introduction? इसमें जवाब साहब, जैसे अगर वी लुक इनटू द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इफ यू कंसीडर कैपिटल एडुकेसी मैनेजमेंट या कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट देखें, तो दीज आर इक्वली एप्लीकेबल टू कन्वेंशनल बैंक एज वेल एज इस्लामिक कमर्शियल बैंक। तो वो रेगुलेशंस जिसमें कोई शरिया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो वो तो रेगुलेशंस इक्वली एप्लीकेबल हैं टू बोथ इस्लामिक एंड कन्वेंशनल बैंक। अच्छा, शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क की इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो दीज आर नॉट एप्लीकेबल टू कन्वेंशनल बैंक, बिकॉज उधर कोई नीड नहीं है आपको शरिया गवर्नेंस की। तो बाज ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो स्पेसिफिक है, और डायरेक्टिव है, गाइडलाइंस है जो स्पेसिफिक है फॉर द इस्लामिक बैंकिंग
या फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए। तो वो आप देखते हैं कि वो जैसे मिनिमम डिपॉजिट रेट है, इंटरेस्ट मिनिमम कॉरिडोर रेट इंस्ट्रक्शन आर एप्लीकेबल टू द कन्वेंशनल बैंक्स, those instructions are not applicable to the conventional banks due to the sharia concern। तो इस तमाम चीजों को इसको कवर करने के लिए लॉ में ये प्रोविजन दे दी गई कि जहां जहां अगर इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के लिए, क्योंकि ट्रांजिशनल पीरियड में ये इसकी बड़ी नीड होगी आपको कि आप पर्टिकुलरली एक एक ही बैंक में एक पार्ट के लिए वो इंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल होंगी, दूसरे पार्ट के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। जैसे एमडीआर है, एमडीआर किसी भी बैंक को कंसिडर कर लें, एचबीएल, एबीएल, जहाँ आईबीबीज हैं, तो कन्वेंशनल में वही मिनिमम डिपॉजिट रेट दे रहे हैं, लेकिन अपने इस्लामिक में वो मिनिमम डिपॉजिट रेट एप्लीकेबल नहीं है। तो जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइंस या डायरेक्टिव्स हैं और जो कॉमन है, इस उसको लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कवर करने के लिए ये प्रोविजन इसमें लॉ में जो है वो इंसर्ट की गई। जी। Yes, sir. Thank you, sir. The next section is 39I, and we talk about the conversion and establishment of Islamic banking subsidiaries. हमने रिसेंटली भी कन्वर्जन अल्हम्दुलिल्लाह देखी है पाकिस्तान के अंदर, और अब फर्दर इस सेक्शन में एड्रेस किया है इस ट्रांजिशन को और एस्टैब्लिश किया है क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जन। स्पेशली सेक्शन में इसके अंदर बताया, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन 50% ऑफ ब्रांचेस आर एसेट्स आर रिलेटेड टू इस्लामिक बैंकिंग, या जब जो कैपिटल है वो मिनिमम पहुंच जाए इस्लामिक बैंकिंग ऑपरेशंस का, जो स्टेट बैंक की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है फॉर इस्लामिक बैंकिंग सब्सिडी, इन सच केसेस बैंक मस्ट ईदर कन्वर्ट टू अ फुल फ्लैज इस्लामिक बैंक या उसको अपना इस्लामिक बैंकिंग सब्सिडी इसको एस्टैब्लिश करना है। तो साहब, इससे do you think that criteria given with this amendment to the BCO is covering the whole situation, or further do you think that is not it contradicting the amended Article 38 of the Constitution, because the Constitution mandated the elimination of riba by January 1st 2028, whereas in BCO हमने कोई डेट या डेडलाइन हमें नजर नहीं आई। तो इससे आपका जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो रिक्वायर्ड। इसे आफ्टर 38 अमेंडमेंट जिसमें ग्रेजुअल आपको कन्वर्जन का कहा गया था, आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डेट January 1st 2028, नाउ इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फॉर द बैंक्स। तो एफएससी का डिसीजन तो ऑलरेडी था कि दिसंबर 2027 तक यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इस्लामिक। तो कॉन्स्टिट्यूशनल भी जो उसको मैंडेट है वो उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया उसके उस डिसीजन को। और अब तमाम बैंक, क्योंकि एक पाकिस्तान के बैंक्स का एक कल्चर है बैंकिंग सेक्टर का कि दे आर रिएक्टिव रादर देन द प्रोएक्टिव, कि वो रिएक्ट करते हैं रेगुलेटर की इंस्ट्रक्शन देखते हुए, गवर्नमेंट की शक्ल देखते हुए, उसकी पॉलिटिकल विल देखते हुए। तो अब इससे ये है कि फीफो के उस पे फर्स्ट आउट वाला ज्यादा फायदेमंद होगा, जो कन्वर्जन की तरफ पहले जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली ये तो एक समझ लें इंशाल्लाह जवाद भाई कि ये चैलेंज नहीं हो सकेगा कहीं भी। अब मतलब इसको जिस तरह की वो अब इंटेंशन तो अल्लाह वो जानता है, लेकिन बहरहाल जो लीगल और रेगुलेटरी इसको अब इसका जो और एफएससी का डिसीजन और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो आ गया। तो एक आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि इसमें जो 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं कि आपके 50% या तो एसेट और डिपॉजिट साइट हो जाए, या आपकी 50% ब्रांच नेटवर्क हो जाए, या आपका कैपिटल जो है। तो आपको एक स्टेटिस्टिक शेयर करता हूं कि 9 आईबीबीज अब ऐसे हैं, 9 कन्वेंशनल बैंक्स ऐसे हैं जिनका कैपिटल जो है वो 50% से वो सब्सिडी के कैपिटल से ज्यादा हो चुका है। मतलब सब इस्लामिक बैंकिंग सब्सिडी के लिए 6 बिलियन रिक्वायर्ड है। तो अब 9 बैंक्स ऐसे हैं जिनका कैपिटल जो है वो 6 बिलियन से काफी अबव जा चुका है। तो वो 9 बैंक्स, अब स्टेट बैंक उसमें क्या देखें उन 9 बैंक्स के लिए करता है। इस अमेंडमेंट के बाद उन पे तो एक और लॉ के हिसाब से भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि अल्टीमेटली दे हैव टू कन्वर्ट,
कि जिनका, क्योंकि उनका सबका इस्लामिक बैंकिंग साइड का जो कैपिटल है वो 6 बिलियन से अब जा चुका है, जिसमें एचबीएल है, बैंक अल हबीब है, बैंक ऑफ पंजाब है, अस्करी बैंक है, बैंक ऑफ खैबर है, यूबीएल है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, एलाइड बैंक है, बैंक अल्फला है। ये 9 बैंक है जिनका कैपिटल जो है वो 6 बिलियन से अब जा चुका है। और इस लॉ के तहत जो यहाँ जो प्रोविजन अब दे दी गई है कि उन्हें अल्टीमेटली कन्वर्ट जो है फोर्सली कहने मतलब बाई लॉ कन्वर्ट होना है। जी Great, sir. Thank you. The next section is with respect to penalties. And penalties serve as deterrent for non-compliance, and here specifically with respect to Sharia rule. And this section outlines these penalties. A penal action may be imposed by State Bank of Pakistan on board of directors और शरिया बोर्ड फॉर वायलेटिंग देयर फाइडेंशियरी ड्यूटीज, जिसकी आपने बात भी की अभी थोड़ी देर पहले, और फॉर नॉन कंप्लायंस विद शरिया प्रिंसिपल। तो जी पेनल्टी फर्दर शरिया गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करेंगी, तो इस रैप में भी आप इस पे रोशनी जी डालिए। जवाब भाई, अगर बीसीए का पेनल्टी ऑर्डिनेंस में तो वो मतलब जनरल पेनल्टी समटाइम, लेकिन हमने अगर इसमें तो हम देखें तो पेनल एक्शन उनको होता है, इनकम चैरिटी हो जाती है, या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात की थी, फ्यूडिशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट अकाउंट होल्डर फंड्स। और इसी तरह शरिया कंप्लाइंस की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इसी तरह शरिया बोर्ड मलेशिया के लॉ में तो समझ लें शरिया बोर्ड के फतवा गलत साबित होने पे 8 साल 8 ईयर्स की जेल और 25 मिलियन रिंगेट का फाइनेंशियल वो जो है उस पे आप कह लें जुर्माना एक तरह से है। तो अब अगर बैंकिंग सेक्टर में भी अगर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इस्लामिक बैंकिंग की, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि अनरिस्ट्रिक्टेड में इनबिल्ट हो जाती है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नेग्लिजेंस इग्नोरेंस सम वॉट किसी तरह इसमें कवर कर ली गई कि अगर आप करेंगे तो आप पेनलाइज होंगे। इसी तरह शरिया बोर्ड अगर कोई गलत उसका फतवा साबित हो जाए किसी स्टेज पे, तो शरिया बोर्ड भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस पे फिक्स होगी उसकी। तो इसमें पेनल्टी एक्शन या कोई भी पैनल एक्शन जो है वो स्टेट बैंक ले सकता है, उसमें मैंडेट मिल गया स्टेट बैंक। जी राइट सर। Sir, next section is with respect to other provisions, and this section allows inclusion of other provisions that will Islamic bank are going to. Could you walk us through the notable provisions you believe are necessary and contribute to the overall goals of the document? इसमें जो है जवाब साहब के जितनी भी प्रोविजंस हैं बीसीओ की, जिसमें एक तो ये बताया गया कि मेंशन किया गया कि टर्म डिपॉजिटर अगर इसमें जो है कन्वेंशन बैंक्स के लिए जो यूज हुआ है, और एक्सेप्ट 26 1 2 और 3 और 4 उस पे कि वो इक्वली एप्लीकेबल है आईएफआई पे। और तो एक तो इस प्रोविजन को कवर किया गया है कि जिसमें, क्योंकि मैंने बताया कि डिफ्रेंशिएट कर दिया डिपॉजिटर्स को सेविंग के, कन्वेंशनल के भी और इस्लामिक के, इसीलिए यहाँ मेंशन किया कि वो डिपॉजिट जो 20 में 1 2 3 और 4 के उसमें आते हैं। उसके अलावा जो प्रोविजंस हैं जो इस्लामिक बैंक्स के लिए हैं तो वो बीसीओ की सारी एप्लीकेबल होंगी। तो बीसीओ की वो प्रोविजंस जो कि शरिया से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती, सिवाय उनके जो कि कन्वेंशनल के डिपॉजिट को कवर, सेविंग डिपॉजिट्स को, उसके अलावा सारी जो है वो इस्लामिक बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे भी एप्लीकेबल है। तो इस सेक्शन में इस बात को जो है वो लीगल कवरेज दी गई है। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा के 10 देने वाले हैं, हम थोड़ा सा रेफर कर देते हैं कि जो लास्टिंग का जो प्रोविजन इसमें डाला गया है वो इसलिए डाला गया है कि स्टेट बैंक ने रेगुलेटरी रिजीम जो मैंने आपसे अर्ज किया 2001 से बाकायदा कंटिन्यू शुरू किया। अगर आप देखें कि 3 टाइप्स की उसने इंस्टीट्यूशन बता दिए,
फिर अगर आप उसके देखें, शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क आ गया, रिस्क मैनेजमेंट की गाइडलाइंस आ गई, पूल मैनेजमेंट की गाइडलाइंस आ गई, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की गाइडलाइंस आ गई, काइबोर के से रिलेटेड चीज़ें आ गई। तो इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को लॉ में उनको कवर कर लिया गया कि जो आपके जितने भी फॉर्मर रेगुलेशंस इशू हुए थे, तो उसको एक लीगल कवरेज दे दी गई, ताकि इसको भी बहुत इम्पोर्टेंट था ये कि उसको कंटिन्यूटी में, क्योंकि सारे ट्रांजिशनल फेस आएगा और उसके बाद अल्टीमेटली इंशाल्लाह कोई वक्त आएगा कि सब ये ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इन तमाम इंस्ट्रक्शन को, जो लास्ट इंस्ट्रक्शन भी थी स्टेट बैंक की, तो इस लॉ में उन्हें सेविंग्स के अंडर प्रोविजन जो एक इसमें ऐड की गई, उसमें ये तमाम हमारी जो लास्ट इंस्ट्रक्शन डायरेक्टिव्स हैं या जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं, गाइडलाइंस हैं, सबको लीगल कवरेज मिल गई। जी, तो अब काफी मेरा ख्याल है हमने इसको एक्सप्लेन थैंक कर यू दिया। खान साहब। आई वुड अप्रिशिएट कि आपने लास्ट सेक्शन खुद ही टाइम को कंसिडर करते हुए कवर कर लिया। सर इसके बाद आई थिंक वी कैन हैव Q&A सेशंस बिकॉज वी हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द इनबॉक्स, and if you allow, before closing remarks we can take some questions. जी, वी कैन टेक। जी, फर्स्ट क्वेश्चन ईशान साहब की तरफ से है, व्हाई बैंक कैन नॉट इन्वॉल्व इन ट्रेड डायरेक्टली। मैंने आपको किया कि सेक्शन 9 जो है डायरेक्ट इसलिए नहीं कर सकता कि एक तो बहुत सी चीजें, टैक्सेशन है। जैसे एक एग्जांपल दूं आपको कि एक बैंक ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ा स्मार्टनेस दिखाते हुए ये शो कर दिया फर्स्ट लेग में कि मेरे पास इतनी क्लोजिंग इन्वेंट्री फर्स्ट लेग पे ट्रेड पड़ी हुई है, वो मुराबा में, इस्तिस्ना में, सलम में। तो फौरन जो है सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा कि विद होल्डिंग टैक्स दे फिर आप इन्वेंट्री पे। तो देना तो चाहिए उसूली तौर पे कि अगर आप ये कहते हैं कि ये गुड्स मेरी हैं और मैंने होल्ड की हुई है, लेकिन लॉ में अगर देखें तो सेक्शन 9 हमें मना करता है कि हम ट्रेडिंग डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो एक कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, लॉ में है। इसी तरह जब आप डायमेंशिंग मुश्किल में हाउसिंग फाइनेंस में जाते हैं, तो यूके जैसे कंट्री ने, जो कि प्योर नॉन मुस्लिम कंट्री है, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये ट्रांजेक्शन में मुझे 2 दफा रजिस्ट्रेशन करवानी है। एक दफा ज्वाइंट रजिस्ट्रेशन करवानी है बैंक और कस्टमर के नाम पे, और लास्ट में करवानी है जब सारे के सारे यूनिट वो परचेज कर रहे हैं तो कस्टमर के नाम पे करवानी है। तो उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी वन टाइम कर दी। लेकिन हम इस्लामिक होने के बावजूद ये सारी चीजें ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। इसी तरह अगर फर्स्ट करें किसी बैंक की लिक्विडिटी हो, तो वो उसकी मोनोपोली के तौर पे ट्रेड में इस्तेमाल करे कि सारी गाड़ियां उठा ले। माजरत के साथ रमजान, मैं मिसाल एक देता हूँ कि रमजान में सारी खजूरें उठा ली उसने, उस बैंक ने, अपनी लिक्विडिटी इस्तेमाल करते हुए। तो ये चीजें कंट्रोल करना, क्योंकि बैंक लिक्विडेट बहुत होता है, उसके पास लिक्विडिटी बाज दफा काफी सफिशिएंट उसमें होती है, मोनोपोली है, टैक्स के चीजें हैं और कंट्रोल्स हैं, फिर एक्सपर्टीज है रेगुलेटर साइड पे भी। और अगर फर्ज करें किसी बैंक को मैं अलाउ कर दूं रियल सेक्टर में जाने के लिए, और उसमें रियल सेक्टर में उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज है ही नहीं, उसकी कैपेसिटी नहीं है, या शेयर इक्विटी मार्केट में मैं उसको अलाउ कर दूं बहुत ज्यादा, या और किसी ऐसे सेक्टर में अलाउ कर दूं जिसमें उसकी टेक्निकल और वो कैपेसिटी नहीं है लोकल और इंटरनेशनल लेवल की, तो वो क्या करेगा, उस इन्वेस्टमेंट को, उसका बहुत ज्यादा रिस्की होगा। तो इसलिए जो है, मैंने जब भी अपने भी उसमें वो आपसे अर्ज किया कि हम सेक्शन 9 को ट्रेडिंग ग्रेजुअली और बहुत कंट्रोल के साथ और बहुत स्ट्रॉन्ग जिसकी कैपिटल एडिक्वेसी हो, क्योंकि आप खुद बताएं ना, अगर एक बड़ी ट्रांजेक्शन में कोई लॉस हो गया और उसकी कैपिटल में इतनी एब्जॉर्बेंट है ही नहीं कि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके, तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए थोड़ा सा अभी डायरेक्ट ट्रेडिंग से जो है वो बैंकों को दूर रखा जा रहा है। जी, थैंक इसके यू अलावा सर। समीउद्दीन साहब ने एक क्वेश्चन पुट किया है, इफ द रिसेंटली BCO 2024 चैप्टर कुड नॉट फ्रीड फ्रॉम द कन्वेंशनल रोल ऑफ फाइनेंसर, देन हाउ इस्लामिक बैंक्स डेवलप बायर एंड सेलर रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। समी साहब, जब एक कमर्शियल बैंक, इस्लामिक कमर्शियल बैंक एग्रीमेंट करता है मुराबा का, तो बायर सेलरी और वाकई में अगर गुड्स परचेज की जा रही है, तो आप बताएं ना और कौन सी रिलेशनशिप होगी। अगर मैंने, आप
किसी बैंक में गए कि मुझे सीमेंट के बैग्स चाहिए, या मुझे यार्न चाहिए, या मैं कॉटन की बेल्स चाहिए, और वो एक्चुअल में है, और अभी फर्स्ट करें मैं यहां से कस्टमर को एजेंट भी नहीं बना रहा, तो क्या करेगा वो? क्या आपको सीमेंट के बैंक अरेंज करेगा, उसकी कॉस्ट आपसे करेगा, उसमें जो शरिया उसको कॉस्ट अलाउ करे, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, स्टोरेज हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कुछ अपना प्रॉफिट डाल के आपको बता देगा। तो यहाँ पे रिलेशनशिप कौन सी क्रिएट हो रही है? डेफिनेटली बायर सेलर की है। और इसी तरह अगर आप गाड़ी या हाउस या XYZ जनरेटर या कुछ रेंट आउट करते हैं, और आपकी बुक्स पे आप उसके ऑनर हैं, और आप उसको बेनिफिशियल राइट सिर्फ सेल कर रहे हैं, और उसका आप रेंटल ले रहे हैं, तो आप बताएं ना कौन सी रिलेशनशिप क्रिएट होगी? डेफिनेटली लेजी की क्रिएट होगी। और इसी तरह अगर आप बिजनेस में एक्चुअल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपकी पार्टिसिपेशन की होगी। तो ये तो ऑब्वियस है कि मैंने आपको बताया ना कि वो लॉ की वो प्रोविजन है और कुछ लिमिटेशंस हैं। वरना अगर एक्चुअल में मुराहबा बैंक करता है, या ट्रेड बेस्ड मोड में जाता है, सलम करता है, या इस्तिस्ना करता है, या मुसव्वमा करता है, तो ये तो नहीं होता ना कि खाली पैसे दे के वो गुड्स की एक रसीदें खाली ले ले। मतलब ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत मतलब कम है। और अगर एक्चुअल चाहे हीला प्रोडक्ट कह ले, लेकिन अगर वो गुड्स कहता है, तो उसकी फिजिकल इंस्पेक्शन भी होती है, या उसका कोई भी सुपरविजन का क्राइटेरिया है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में भी कहीं आप अलाउ करते हैं चीजें, तो रिलेशनशिप तो डेफिनेटली क्रिएट होती है, और वो डिफरेंट होती है उससे कन्वेंशनल बैंक से। Thank you, sir. The next question is from Mr. Wajahat, and his question is: what if any customer does not give consent for the conversion of his saving conventional account to Islamic account after the conversion of all branches? तो फिर ये होगा, जो बैंक का कन्वेंशनल पार्ट रह गया है, तो उधर मूव कर जाएगा वो। क्योंकि अल्टीमेटली यही है कि सेविंग के लिए आपको वो बार बार परसुएट करेगा, बार बार फॉलो अप करेगा, और आप अगर ये कहेंगे कि मुझे नहीं करना, तो फिर आपसे बिजनेस रिलेशनशिप जो है वो खत्म कर लेगा। फिर आप किसी, जब तक कन्वेंशनल बैंक कोई मौजूद है, उसका पार्ट मौजूद है, अब उसका पार्ट बन जाएंगे। लेकिन अगर वो फुल कन्वर्जन में है, तो जाहिर है यू अल्टीमेटली यू हैव टू लीव दैट बैंक। अगर फैसल बैंक में फर्स्ट करें 100 डिपॉजिटर सेविंग के ऐसे होते जो कहते हैं कि नहीं, हमें फैसल भी नहीं छोड़ना, और हमें हमें इंटरेस्ट बेस भी रहना है, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो आप यही है कि वो आपका एग्रीमेंट इस तरह का है कि वो खुद कह सकता है कि भाई मैं आपसे बिजनेस रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। बैंक कह सकता है आपसे कि यू कैन मूव टू अनदर बैंक। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी ऐसे ही होगा कि अगर बहुत सी सूरतों में सारी आपने हुज्जत तमाम कर ली, नोटिसेस दे दिए, आपने मैसेजेस दे दिए, काउंटर पे वो आया है, वहां भी लेटर आपने दे दिए, और आपने लॉ में भी पूछे कि अगर दो पार्टनर हैं और एक पार्टनर, जवाद भाई भी इसको बताएंगे, अपना पूरा कंसेंट दे दिया और उसको कम्युनिकेट भी कर दिया कि भाई मैं ये एग्रीमेंट या इसकी एक सर्टेन क्लॉज या प्रोविजन चेंज करना चाहता हूँ, और वो 20 दफा इंटीमेट करने के बावजूद भी वो रिस्पॉन्स नहीं करता, तो फिर वो क्या होगा? वो मतलब अल्टीमेटली वो यही कहेगा कि भाई एग्जिट का कोई आप वो करें मुझसे, फिर मैं एग्जिट करता हूँ उससे। जी। Yes, बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया. Next query is from Mr. Asfanyar, and he's saying where the charity caused by penalty will be spent by him, बैंक, कंज्यूमर, अदर्स. आई थिंक इनका चैरिटी के यूजेज के रेफरेंस से क्वेश्चन है. चैरिटी कॉज्ड बाय पेनल्टी, किसका यूजेज मैंने आपसे अर्ज क्या किया होगा? कि स्टेट बैंक की रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग है, और उसको बड़ा कैटेगोरिकली जो है उसकी इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाती है कि उसके मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट में, उसके पर्सनल एम्प्लॉयज में किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते आप। उसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया उसका बोर्ड और उसका शरिया बोर्ड अप्रूव करता है, केस टू केस बेसिस पे स्क्रूटनाइज होता है कि जो चैरिटी इंडिविजुअल को गई है, या जा सकती है इंडिविजुअल को भी। मतलब खुद अगर कोई ऐसा है कि हार्ट का बहुत शदीद उसका ऑपरेशन है, और वो उसकी बिल्कुल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, और एक्सेस ऐसे किसी हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, तो इन केसेस के लिए बिल्कुल स्क्रूटाइज करके वो जो है वो चैरिटी। लेकिन ये इतना मतलब ट्रांसपेरेंट वो है कि इसमें बहुत कम
केसेस नजर आते हैं कि कोई इस तरह की अपने पर्सनल किसी भी एम्प्लॉयज के लिए यूज नहीं कर सकता, एडवर्टाइजमेंट के लिए। स्टेट बैंक की रेगुलेशंस बड़ी वेल डिफाइंड है, उन्होंने बैंकों की पॉलिसी डेवलप करवाई हुई है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग होती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले उसका पोस्ट पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑडिट होता है, प्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑडिट और शरिया और कंप्लाइंस सारी चीजें होती हैं जी। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब्दुल रहमान करीम साहब का है। काफ़ी लेंथी होने की वजह से मैं इसको एंड पे इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस हम ले सकें। इसके बाद मिस कमल का क्वेश्चन है, सर व्हाट इम्पैक्ट डज इस्लामिक बैंकिंग हैव ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? एक तो अगर अ, हदीस सिर्फ रखें अल्लाह और रसूल से जंग, तो सूद से छुटकारा हासिल करना सबसे पहले तो ये उसकी बरकत बिल्कुल होंगी। और मैंने बार बार अर्ज किया कि हम प्रिंसिपल पे, शरिया के और रेगुलेशन रूल्स पे कभी बात नहीं करना चाहिए हमें, प्रैक्टिसेस पे बात तो कर सकते हैं हम। लेकिन अगर कोई ये कहे, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि मैं जब रिबा की बात करता हूँ तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्फ्लेशन, गोल्ड की क्या वैल्यू थी, डॉलर कितने का था। तो अगर आप देखें कमर्शियल कंसिडरेशन में कर्ज या लोन जो है वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं है। आप खुद, मैं एक मिसाल देता हूं कि अगर मैं अभी सारी शरिया और सब भूल जाऊं और सिर्फ एक बात कंसिडर करूं कि मेरी सिस्टर ने या मेरे भाई ने मुझसे 1 मिलियन लोन लिया, तो खुद अंदर से पूछ के बताएं और मैं ये 3 महीने बाद कहूं कि आप मुझे 11 लाख रुपए देना, तो कैसी फीलिंग आती है। अभी शरिया और सारी भूल जाए। अच्छा, वहीं पे आप 1 1 मिलियन कोई बिजनेस के लिए आएगा तो फौरन आप पूछेंगे मुझे प्रॉफिट कितना दोगे। फिर आपका बहुत अच्छा भाई बहन है तो निगोशिएट होगा और एक प्रॉफिट पे आप एग्री कर जाएंगे। तो ये खुद करके देख लें एक्सरसाइज, अभी शरिया और उसको एक तरफ रख दें। तो जहां जैसे ही ट्रेड आई मैंने प्रॉफिट की बात करना शुरू कर दी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आ गई, और जहां पे मैंने रिबा की बात की तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और वो किस तरह है और उसकी किस तरह है। आपको पता है कैपिटल वर्किंग फाइनेंसिंग है वो कितना यूज होती है, रनिंग फाइनेंस है या और दूसरे अगर लोन एडवांसेस होते हैं तो कितने प्रोडक्टिव उसमें यूज होते हैं, आपको इसका अंदाजा है। लेकिन अगर इस्लामिक बैंक ट्रू कॉन्ट्रैक्ट पे और ट्रू लेटर एंड स्प्रिट, अगर ट्रेड है तो प्योरली ट्रेड बेस्ड उस पर, अगर इजारा है तो प्योरली इजारा है। अब कोई कुछ भी कहे, देखें जब तक गाड़ी आपको डिलीवर नहीं होती इस्लामिक बैंक कैन नॉट चार्ज द रेंट, क्योंकि आपने यूज ही करना नहीं शुरू किया। अच्छा, कन्वेंशनल में जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है आउट ऑफ पॉकेट, वो आपका अकुमुलेट कर सिस्टम में अक्रूवल शुरू हो जाती है। आपकी गाड़ी आपको 5 महीने के बाद मिल रही है, लेकिन 5 महीने का, अब बहुत मैंने आपसे कहा प्रैक्टिसेस की, प्राइसिंग की, काइबोर की और दूसरी चीजों की रिसर्च डेवलपमेंट का काम है, जिसमें खाली बैंकों का काम नहीं है। मदारिस में जो रिसर्च हम 8 साल जो मुफ्ती हजरात वो करते हैं, उनके क्यूरिकुलम में इस तरह की चीज़ें शामिल होना, इस्लामिक फाइनेंस का शामिल होना, टेक्नोलॉजी का शामिल होना, इंग्लिश लैंग्वेज का शामिल होना, अकाउंटिंग का शामिल होना, लॉ का शामिल होना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये एक हाइब्रिड मतलब कॉम्प्लेक्स वो है, स्ट्रक्चर है। सारे स्टेक होल्डर मिलकर जब तक नहीं करेंगे, रेगुलेटर का खाली शक्ल देखते रहेंगे, सारी स्पीड। अब बताएं ना, स्टेट बैंक का अगर जवाब भाई आप खुद बताएं, अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव में देखूं तो जो मैं रिस्क की लेयर्स की बात करता हूं, तो लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे लास्ट में आता है स्टेट बैंक। पहला लाइन ऑफ डिफेंस बिजनेस आपका, कि बिजनेस को पता है ये जो बिजनेस ले रहा हूं ये कैसा बिजनेस है, उसको उसकी अंडर राइट करना, उसकी क्रेडिबिलिटी देखना, उसके बिजनेस के प्रोसेस देखना, उसका कैश फ्लो देखना, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखना। तो पहला लाइन ऑफ डिफेंस, अगर जिसका बिजनेस चाहे लाइबिलिटी साइड हो या एसेट साइड हो, आपको पता है कि अगर इस्लामिक में जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक ने एक मुझे केस बताया कि बाद में पता चला, मतलब इसको डिबेटेबल तो है कि उन्हें पता चला कि भाई ये डिपॉजिट आया था, ये प्योरली जो है ये नॉन शरिया कंप्लाइंट एक्टिविटीज थी। तो अब हमने रेगुलेशन का पार्ट तो नहीं बनाया, लेकिन अगर वो वहीं उसी स्टेज पे स्क्रूटनाइज कर देता, वो बेचारे ने वो टारगेट की वजह से अगर वो उस तरह कर लिया। इसी तरह फाइनेंसिंग में भी यही है कि अगर पहला बिजनेस है, फिर उसके बाद क्या है, कंट्रोल और रिव्यू वाले एरियाज हैं, फिर ऑडिट आ जाता है, फिर लास्ट में आपका जो है एक्सटर्नल ऑडिट के बाद सुपरवाइजर आता है। तो अगर हमारी ये सारी लेयर
स्ट्रांग हो तो फिल्टर होता चला जाता है आपका। और सुपरवाइजर का रोल, अच्छा अब तो ये भी होता है कि पेनल्टी तक बजट होती है कि अगर ये एक्टिविटी करूंगा तो रेगुलेटरी पेनल्टी कितनी लगेगी। इतने स्मार्ट है बैंक अपना कि रेगुलेटरी पेनल्टी पहले बजट करते हैं कि इस नॉन कंप्लायंस की वजह से कितनी पेनल्टी लगेगी और मुझे प्रॉफिट कितना होगा। तो अगर ये एटीट्यूड बैंक का हो तो जाहिर है फिर चाहे कन्वेंशनल साइड पे हो, एथिकल बैंकिंग को ले लें या शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग को ले लें, तो वो ठीक नहीं है। जी हमाद भाई, जी जवाद भाई, सॉरी। अच्छा ये बच्चे बेनिफिट सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल सोशल फाइनेंस का कॉन्सेप्ट मकासद शरिया का ये बहुत ज़रूरी है। एक्सेस टू फाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पॉवर्टी एलिविएशन। अभी तक तो पाकिस्तान में नारे ही लगते हैं, चाहे माइक्रो फाइनेंस बैंक उठा लें या मतलब और कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन उठा लें। जब तक अगर एक्चुअल उसमें आपने बिल्कुल सही वो किया कि हम सोशल फाइनेंस को और एंडाउनमेंट फंड को और हम डिप्राइव्ड जो हमारा सेगमेंट है उसको जब तक हम अपने इस रिजीम में, फाइनेंशियल रिजीम में और उसमें नहीं लेके आएंगे तो ये बेनिफिट जो है ना ये सोसाइटी के उस तरह नहीं जाएंगे रिबा फ्री बैंकिंग के। जी जवाब साहब। जी जवाब साहब, अब मेरा ख्याल है जवाब साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जीशान, आपकी आवाज नहीं आ रही जवाब साहब। आई कैन नॉट हेयर यू। आपका माइक ऑफ है जवाब साहब, आपका माइक ऑफ है। इनका माइक जवाब साहब का तुम नहीं किया है? जी जवाब साहब आपका माइक ऑफ था। जी थैंक यू। एक्चुअली आई वाज टू अनम्यूटेड लेकिन वो हो नहीं रहा था, तो अब हो गया अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी लेकिन जी। होस्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी मेरे समेत। एनीवेज, दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन। जी सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अब्दुल रहमान करीम साहब। और इनका क्वेश्चन मैं अगर ब्रीफ करूं तो इन्होंने बात की है। My question is that how Islamic Bank overcome the deficiencies of implementing the musharaka which core of Islamic banking considering the following issues। इन्होंने कुछ issues highlight किए हैं: ownership issue, legal framework, repayment issue and default, clients unwillingness to share the profit and tax issue, risk of loss, uh, secrecy of the business, dishonesty and moral hazard। तो ये अभी बैंक अगर ये बैंकिंग को छोड़ दें, अगर नहीं आए नॉर्मल कोर्स में, अगर ये कोई पार्टनरशिप आपसे ऐसी करे कि वो कहे मैनेजरियल अकाउंट में एक्सेस नहीं दूंगा, फैक्ट्री में दाखिल नहीं होने दूंगा, रोज की एक्टिविटीज बिजनेस की नहीं बताऊंगा, फाइनेंशियल कोई डिक्लेयर नहीं करूंगा, तो आप बताएं उसके साथ बिजनेस करें? तो बैंक के पास तो डिपॉजिट ही फंड ही दूसरों का होता है, उसको सेफ गार्ड करना, उसको प्रोटेक्ट करना उसका काम है और उसको फेयर रिटर्न देना अच्छे तरीके से, प्रूडेंटली उसको रेगुलेट करके, उसको सुपरवाइज करके, उसको एग्जीक्यूट करना ट्रांजेक्शन को। तो आपने तो कंसर्न खुद ही बता दी है, सारे मोरल हैजर्ड है कि अगर जैसे मुशारका में, आपको बात बताऊं जवाद भाई, बहुत पहले की, जब 90s या 80s में फैसलाबाद के कुछ बड़े कॉर्पोरेट आए और हमारे डिप्टी गवर्नर से मिले उस जमाने में कि हमसे मुशारका नहीं करते। अगर आप एक सुकूक देखें ना, सितारा का सुकूक सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता था, वो ठीक अगर था। तो क्या हुआ, जैसे ही पहले साल बैंक उनके साथ मुशारका में शामिल हुए तो उनका 3 साल का प्रॉफिट डिप कर गया एकदम लॉस में। तो अब ये मोरल हैजर्ड है, मतलब हमारे यहाँ फाइनेंशियल वो करना। तो अगर ये डिमांड और लाइबिलिटी साइड पे, उधर जहाँ डिमांड है उस साइड पे ही ऑनेस्टी नहीं है, प्रोफेशनल ऑनेस्टी नहीं है, तो कोई बंदा नहीं करेगा तो बैंक क्यों करेगा वहां पे? तो ये तो है बिल्कुल। जीशान साहब की तरफ से क्वेश्चन है, आई थिंक पार्टली इसको कवर कर भी लिया एक और क्वेश्चन में आपने, बट मैं व्हाट इज द बेनिफिट टू सोसाइटी इन रिबा फ्री बैंकिंग, हाउ पुअर
and economy can be get benefited from riba free banking? मैंने आपसे वही अर्ज किया कि अगर मकासिद शरिया और एक्सेस टू फाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पोवर्टी डिप्राइव, उसको सोशल फाइनेंस की बात हो रही है, ग्रीन फाइनेंसिंग की हो रही है, ईएसजी की बात कर, तो ईएसजी का तो आप एक एक पैरामीटर भी उठा के अगर देखें ना और इस्लामिक और शरिया से उससे मिलाएं तो 1400 साल पहले डेवलप हो चुका था। एंडाउनमेंट फंड, जक़ात, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला के ज़माने में जक़ात लेने वाला कोई कैसे नहीं मिलता था, इसी वजह से नहीं मिलता था कि जो जक़ात फितरे के, जैसे जवाद भाई मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे यहाँ मुसलमान सबसे ज़्यादा सेंसिटाइज होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में। जब मुझे जक़ात देनी होती है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एक रत्ती और माशा भी गोल्ड का वजन मेरा ज़्यादा ना निकले। इसी तरह जब मैं फितरा देता हूँ तो सारे लोग मुझ समेत गेहूं का फितरा देते हैं, हालांकि दे और ही और शी क्वालिफाइज फॉर द किशमिश एज वेल, किशमिश या उससे ऊपर की चीजें क्वालिफाई करते हैं। तो इसमें ये बेनिफिट बिल्कुल होगा अगर हम इसको सही मानों में जो स्पिरिट है, इसके वक्फ के मॉडल को, इंडाउनमेंट फंड के मॉडल को, सोशल फाइनेंस को इस तरह, और जक़ात का भी एक पूरा पूरा एक मॉडल है। अगर आप मदीने की कॉन्स्टिट्यूशन को उस वक्त देखें तो पूरा एक सिस्टम क्रिएट था उस जमाने में भी। तो बिल्कुल इकोनॉमिक में बेनिफिट होगा और डिप्राइव्ड सेगमेंट जो है वो उनकी चीजें जो है वो एड्रेस हो सकती हैं। जी जीशान साहब। जीशान साहब ने हैंड रेज किया, आई थिंक शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, बट जी जीशान साहब प्लीज, जीशान साहब। सर अनम्यूट का ऑप्शन सिर्फ होस्ट के पास है, आई थिंक अटेंडीज अनम्यूट नहीं कर सकते खुद से। मीनवाइल जब तक जीशान साहब को अनम्यूट करते हैं, एक और क्वेश्चन सर मैं ले लेता हूँ। फुरकान साहब पूछ रहे हैं, डू इस्लामिक बैंक्स authentically share losses with customers or is it solely a theoretical commitment? नहीं, थ्योरेटिकल कमिटमेंट नहीं है। अगर आप स्पेशल पूल में जाते हैं, फर्स्ट करें स्पेशल पूल में जाते हैं और आपके साथ उसने एक एसेट ही टैग किया हुआ है और उसमें लॉस होता है तो किसी तरह भी कंपनसेट, और एक्चुअल बिजनेस लॉस होता है तो किसी तरह भी कंपनसेट नहीं कर सकता वो एक्चुअल लॉस पास। वो तो जनरल पूल की केमिस्ट्री इस तरह की है, वो बनी हुई है, वो इस तरह का स्ट्रक्चर है कि वहां पे लॉस एक दूसरे के साथ डाइल्यूट हो जाता है और अल्टीमेटली आपसे लॉस और वो शेयर होता है। लेकिन जहां अगर सिंगल एसेट टैग हो गया स्पेशल पूल में और वहां लॉस हो गया तो बिल्कुल पास ऑन होगा। थैंक यू सर। असफर यार साहब ने पूछा है कि बैंक बेसिक पर्पस इन लेंडिंग मनी एंड बोरिंग मनी टेक हायर फ्रॉम लेंडर्स एंड लो टू डिपॉजिटर्स एंड ऑपरेट एज अ प्रॉफिट इन नॉर्मल रूटीन, बट इस्लाम सेज इंटरेस्ट इज ओनली इन मनी लेंडिंग, सो एक्सप्लेन। मनी लेंडिंग मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि बीसीओ में लेंडर बोरोवर की बात हो रही है। पूरी दुनिया के बैंकिंग के लॉज उठा के देख लें, वो सिर्फ बोरोवर और लेंडर की बात करते हैं, कर्ज देने वाला, कर्ज लेने वाला। और कर्ज क्या दिया जाता है? कोई माल नहीं होता, वो होता है पैसा, और उसी को प्राइस करते हैं आप। और उसी प्राइस के आप कितने अरसे में देंगे उसके उसको प्राइस करते हुए उस पर चार्ज कर लेते हैं आप इंटरेस्ट। तो लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया यहाँ भी जो एक्ट में रिलेशनशिप की, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप की बात हुई है, तो वहां तो फौरन वो कहता है कि आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस एक्टिविटी क्या हुई है, ट्रेड बेस्ड हुई है तो अच्छा आप सेलर बायर हैं, अगर आपकी रेंटल बेस्ड हुई है तो आप लेजी और लेजोर हैं, अगर पार्टिसिपेटिव हुई है तो आप पार्टनर हैं। तो वहाँ अगर सही मानों में स्पिरिट के साथ ये सारे एक्चुअल एप्लीकेबल हो तो बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह मतलब लॉ में कवर किया गया है या जिस तरह इस्लामिक बैंकिंग की प्रैक्टिसेस बताई जाती हैं। राइट सर, थैंक यू सर। जीशान साहब आपका माइक आई थिंक अब अनम्यूट है, इफ यू कैन शेयर योर इनपुट। आपका हैंड रेज है काफी, प्लीज। जी इस्लाम जी इस्लाम वालेकुम इस्लाम साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने टॉपिक और वक्त चूज़ मुकर्रर किया है इस वेबिनार के लिए, और यकीनन इसको इसके ये सब इससे मुस्तफ़ीद होंगे और खुदा आपको इसकी जज़ाए खैर दे। अच्छा, ये आपने एक पॉइंट ना सवालात लेने से पहले आपने एक चीज़ पॉइंट अर्ज किया कि जो बैंक्स हैं जिनका कैपिटल इस लिमिट का है या इस थ्रेशोल्ड का है, जिसमें आपने नाम लिया बैंक अल हबीब, एचपीएल और दूसरे, तो वो ज़रा पॉइंट दोबारा रिपीट और इलाबरेट कर दें फर्स्टली। सेकेंडली इज दैट कि इस वक्त है ना फैसल बैंक के बाद इस वक्त करंटली आपकी मालूमात में कौन से बैंक्स इस कन्वर्जन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए
बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं जो आपकी मालूमात में हो और आप शेयर कर सकें प्लीज। जी इस्लाम भाई, आपका माइक अगर आप अनम्यूट कर लें प्लीज। इस्लाम साहब, आपका माइक म्यूट म्यूट पे है प्लीज। हाँ। होस्ट अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज अगर आप इस्लाम साहब का माइक अनम्यूट कर दें। जवाद साहब आप भी होस्ट हैं? मेरे मेरे एंड से तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर आप भी एज अ होस्ट ही अच्छा जी विजिबल ठीक हैं। है जी, ओके, तो जी जी दरअसल जी इस्लाम भाई, अब हम आपको सुन रहे हैं। अच्छा, ये जिशान भाई, वैसे तो आपने खुफिया मालूमात लेने की कोशिश की है ये कि कौन से बैंक क्या कर रहे हैं, लेकिन अक्टूबर 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 तक डेडलाइन है। तो आज मैं स्टेट बैंक किसी उसके मीटिंग के लिए गया था, तो सारे बैंक बाउंड है अब तक कि अक्टूबर तक उन्हें कन्वर्जन प्लान जैसा भी बनाए, लूला लगड़ा कहीं से अप्रूव्ड है नहीं है, वो दे हैव टू सबमिट। इसके बाद स्टेट बैंक रेस्पॉन्स करेगा। एक ही। जी जीशान साहब कुछ और पूछना सर चाहते पहले हैं? फर्स्ट पॉइंट भी रिपीट करते हैं, मैंने अर्ज किया था कि जो आप बता रहे थे कि जो बैंक्स बाउंड है, दे आर वेरी मच बाउंड टू फॉर कन्वर्जन, जिसके आपने जिक्र किया बैंक अल हबीब और एचबीएल कुछ क्राइटेरिया के तहत। तो वो प्लीज जरा पॉइंट को रिपीट और एलाबरेट कर दें। जी, मैंने ये अर्ज किया था कि जो स्टेट कन्वर्जन का जो प्रोविजन डाला गया है लॉ में, उसमें तीन कैटेगरी रखी गई है। जो है वो इस्लामिक कि बैंकिंग सब्सिडी के बराबर हो जाता है, जो कि 6 बिलियन है। आपकी अगर ब्रांच नेटवर्क जो है वो 50% हो जाता है आपके पूरे बैंकिंग ब्रांच नेटवर्क के। और इसी तरह अगर आपका एसेट या डिपॉजिट जो है वो 50% हो जाता है, तो अल्टीमेटली आपको कन्वर्जन की तरफ जाना पड़ेगा। ये मैंने आपसे अर्ज किया था। तो अभी 9 बैंक्स ऐसे हैं जो कि जिनका कैपिटल जो है वो 6 बिलियन से अबव है, तो उनको बाय लॉ मेरे हिसाब से जाना पड़ेगा। डिपॉजिट ऑफ इस्लामिक ना? जी जी, डिपॉजिट इस्लामिक, ब्रांच नेटवर्क ऑफ इस्लामिक, कैपिटल ऑफ इस्लामिक पार्ट। अगर राइट। ये 6 बिलियन से ऊपर हो गया, 50% ये पोर्टफोलियो हो गया, नेटवर्क 50% से अबव हो गया, तो आपको फिर अल्टीमेटली कन्वर्ट करना है पूरा बैंक। जब मैं दूसरा जी एक जीशान साहब, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जीशान साहब हैंड रेज किया हुआ है काफी देर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा इस्लाम साहब, मुझे आपने अभी एग्जांपल दी कि जैसे सितारा वालों का, उन्होंने कहा हमें मुशारका पे करना है, फिर उन्होंने ज़ाहिर लॉस दिखाना शुरू कर दिया। तो बात, मैंने एमफिल किया हुआ है इकोनॉमिक्स में, तो मैं ज़ाहिर है रिसर्च थोड़ी पढ़ता हूँ चीज़ों को ना। तो उसमें यही इस्लामी बैंकिंग के अंदर है कि दोनों साइड पे जो ऑनेस्टी लेवल है उसकी कमी है। सोसाइटी के अंदर भी मतलब एक ऑनर करें, मतलब ऑनेस्टी के साथ चीजें, तो वो चीज आगे जाए ना। तो दोनों जगह पे कहीं ना कहीं ऑनेस्टी का फर्क है। तो मेरा सवाल ये है कि जब हमें, देखिए इस्लामी बैंक बन तो रहे हैं, लेकिन वो भी कन्वेंशनल का मैच कर रहे हैं। वो कहते हैं भाई कन्वेंशनल का प्रॉफिट इतना है तो हमने भी इतना करना है। अब देखिए, मैं काफी टाइम से वॉच कर रहा था मीजान बैंक को और एचबीएल को। ये 2010 से एचबीएल लगा हुआ, तो मीजान लगा हुआ था कि मैंने एचबीएल को बीट करना है। पहले एचबीएल अनडाउटली मतलब वो नंबर वन होता था। इन्होंने 2000 किया और अब कंटिन्यू। एचबीएल को भी पता है कि अब मैं आगे अगर मुझे बढ़ना है तो मैं कन्वेंशनल किसी से तो नहीं बन सकता, उसको भी मीजान पे इस्लामी जाना पड़ेगा। क्योंकि इस्लामी जो है उसको आसानी ये है कि उसके पास एक एज है कि भाई वो इस्लामी है, तो कस्टमर खुद आता है। तो मेरा सवाल ये है कि
स्टेट बैंक ऐसी कोई मतलब कंडीशन क्यों नहीं लगाता बैंक के प्रेजेंस के ऊपर या हायर मैनेजमेंट पे कि भाई वो लोग ऊपर आएंगे इस्लामी बैंकिंग के अंदर जिनका कुछ शरीयत से या कोई इस्लामी उससे ताल्लुक हो। अगर वही माइंडसेट वाले लोग इस्लामी बैंक को चलाएंगे तो यही हाल होगा। तो मेरा सवाल इससे कोई स्टेट बैंक की तरफ से कोई सर लॉ क्यों इसमें नहीं आता या कुछ ये ऐसी। एक तो स्टेट बैंक ने फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया एक में से एक या कोई एक तो जवाद एक भाई चीज मैं और हम जवाद भाई 3 मिनट में वाइंड अप कर देंगे फिर 3 मिनट के बाद ना। अच्छा बस एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक अपने बुजुर्ग ने एक सिखाया कि अगर तुमने कारोबार में तरक्की करनी है ना तो तुम तब तरक्की करोगे जब तुम्हारी ज़कात जो है ना हर अगले साल से अगले साल ज्यादा हो पिछले वाले से। तो ये एक मतलब कामयाबी का वो है कि आपकी ज़कात कितनी बढ़ रही है। तो इस्लामी बैंक जो तरक्की तो कर रहा है लेकिन वो खुद अपनी तरक्की कर रहा है। वो सोसाइटी कहाँ जा रही है, क्या उसकी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो नीचे लेवल पे कहीं जा रही हो, वो नहीं दिखता। वो बस सिर्फ एक इस्लाम को चल रहा है। हमें सिर्फ रिबा फ्री करके सिर्फ अपने आप को तो नहीं अच्छा करना, आपने ओवरऑल चीजों को देखना है। तो मेरा मेन सवाल ये कि स्टेट बैंक की कोई ऐसी कंडीशंस हैं जो प्रेसिडेंट या उन लोगों के लिए हो कि ये लोग इस्लामी को आगे लेके चलें, इनका ये क्राइटेरिया वो लोग बिल्कुल है, आगे। बिल्कुल है, बिल्कुल है। एफपीटी क्राइटेरिया में जब कोई एग्जेक्टिव हमारे पास आता है तो हम उसकी सारी क्वालिफिकेशन के साथ साथ उसकी रिलेवेंसी, उसका इसकी इस्लामिक बैंकिंग पे उसकी एजुकेशन और ये तमाम चीजें देखते हैं। और अगर वो नहीं होता तो स्टेट बैंक एक उसके अप्रूवल में कंडीशन डालता है कि आप आईबीसीसी, जो कि 3 हफ्ते का हमारा निबाव का इस्लामिक फाइनेंस का कोर्स है। अच्छा ये देंगे माइंडसेट की जो बात की ना आपने, माइंडसेट तो मतलब ट्रेनिंग से, सॉफ्ट स्किल से, ये ये तो पाकिस्तान के लोगों की नेचर बहुत अजीब है इसमें कि आप रक्शे का अगर कोई एक स्कीम निकाल दें, आप इवन के साइकिल की स्कीम दिखा ले लें, पीली टैक्सी की स्कीम ले लें, तो मतलब इसको तो डिफॉल्ट पैसे लेके देना नहीं है माजरत के साथ। तो ये वाला कल्चर कैसे मतलब बैंक वो कवर करेंगे? तो अब इसीलिए अनसिक्योर्ड ट्रांजेक्शन जो है, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस लेवल पे, डिप्राइव लेवल पे अनसिक्योर्ड की बहुत सारी प्रोविजन स्टेट बैंक ने दी है। और आप जो उसकी माइंडसेट की बात करते हैं तो उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग उसकी बिल्कुल देखी जाती है, उसका माइंडसेट देखा जाता है। ट्रेनिंग्स के ऐसे रेगुलेशंस डाले गए हैं कि उसकी ओरिएंटेशन हर साल होना, उसकी उससे आगाही होना और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप करना एग्जेक्टिव की भी जिम्मेदारी है और शरिया बोर्ड की भी जिम्मेदारी है कि उसकी सेंसिटाइजेशन जो है टूवर्ड शरिया उसको अलर्ट रखना है, 6x6 रखने की कोशिश करना है। जी तो जी जी इस्लाम साहब, समीउद्दीन साहब पूरे सेशन में काफ़ी एंगेज रहे हैं हमारे साथ और उन्होंने हैंड रेज किया बड़ी देर से। तो मैं आखिरी क्वेश्चन आपकी टाइम डेडलाइन को हाँ बस कंसिडर वो करते जवाब भाई मैं लास्ट इनसे क्वेश्चन हो रिक्वेस्ट गया करते जी। हुए कि उसको ब्रीफ रखते हुए प्लीज़ लास्ट क्वेश्चन पूछ लें, फिर हम क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ जाएंगे। जी समी साहब प्लीज़। वालेकुम। वालेकुम सलाम समी साहब। और मेरी रिक्वेस्ट है मोहम्मद जवाद जफर साहब से कि उन्होंने आपसे जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो अगर उनके पास रिटर्न फॉर्म में है तो ग्रुप में ज़रा शेयर कर ले, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है। उसकी फी देना पड़ेगी कंसल्टेशन समी साहब। ठीक है ऐसे सर। तो ऐसे तो फ्री में नहीं मिलेगा ना आपको। नहीं वो बिल्कुल दे देंगे आपको समी साहब। हम जजाकल्लाह खैर। हम जजाकल्लाह, हाजिर हैं। बेहतरीन हम हाजिर हैं इंट्रोडक्शन। इसके लिए। हम जज़ाकल्लाह हाजिर खैर, थैंक यू सो वेरी मच। एंड इस्लाम साहब, क्योंकि आपने डेडलाइन दी हुई थी तो मैं क्लोजिंग रिमार्क्स पे जाने से पहले बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस शायद एड्रेस होना रह गए। आई ट्राइड कि मैं सारे पार्टिसिपेंट्स, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स का एटलीस्ट एक क्वेश्चन ले सकूं। तो जिनके रेपिटेटिव क्वेश्चंस थे मे बी उनके कुछ क्वेश्चंस रह गए हों, बट इंशाल्लाह व्हाट वी कैन डू कि हम इन क्वेश्चंस का फिर रिटर्न आंसर जो है वो ग्रुप में शेयर कर देंगे जो रह गए हैं। तो क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, टुडेज डिस्कशन हैज शेड लाइट ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ रीसेंट लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स ऑन पाकिस्तान इस्लामिक बैंकिंग फ्रेमवर्क। और मैं एक्सटेंड करूंगा हार्टफुल थैंक्स टू मिस्टर मोहम्मद इस्लाम अहमद, former senior joint director, head of policy division in State Bank, and current CEO and founder of Al Nasir Solution Private Limited, for his invaluable insight, and to all the participants for their active engagement. एंड ऑब्वियसली इन चेंजेस ने पाकिस्तान की ऑन गोइंग कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट किया है एट रेगुलेटर्स लेवल एंड एट कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल। एंड एट द एंड आई वुड लाइक से स्पेशल थैंक्स टू
our subject expert Muhammad Islam Saab, and I would also like to say thank you all for joining us. Please take good care of you, and Allah Hafiz from my side. थैंक यू जवाद, और तमाम पार्टिसिपेंट का भी शुक्रिया। तो मैं जैसे आपसे अर्ज कर रहा था कि इट इज़ नॉट ए टास्क सिंगल स्टेक होल्डर। तो जितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिमांड या उस पे साइड पे हैं, सप्लाई साइड पे, सब तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है, चाहे वो आप कस्टमर हैं, चाहे आप वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो एकेडमिक वो हैं, चाहे आप मदरसे से आपका ताल्लुक है, चाहे आप जुडिशरी से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक्स हैं, कि जब तक वो सब मिलके इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम के, इकोनॉमिक सिस्टम के लिए हम कोशिश नहीं करेंगे, और अपना एटीट्यूड और बिहेवियर भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी हर शख्स से डिमांड करता है कि वो अपनी लाइफ जो है वो एज पर शरिया, कुरान और सुन्ना के हिसाब से कोशिश करे। और मोरल हैजर्ड, जैसे आपने कहा, एसएमई का सेक्टर हो या फलाना सेक्टर हो, इसमें सबसे बड़े मोरल हैजर्ड यही है कि हम उसमें जो हमारा पार्टिसिपेट करता है या जो फंड प्रोवाइड करता है उसको हम मैनेजेरियल एक्सेस नहीं देते, उसको अपने अकाउंट दिखाने की कोशिश नहीं करते, उसका बिजनेस नहीं बताते, उसमें कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो अगर ये ऑनेस्टी का जो रिश्ता है आपस में, डिमांड और सप्लाई साइड पे रहा, तो इस्लामिक बैंकिंग और टू उस पे अपने मकासद शरिया पे इंशाल्लाह चली। और हमें अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, लीगल या रेगुलेटरी जो भी एनेबलिंग प्रोविजंस हैं उस पर क्रिटिसाइजिंग, माजरत के साथ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की आप अगर विजनरी इनॉग्रेशन ऑफ स्टेट बैंक पे जो स्पीच थी, वो ऐसी स्पीच है कि किसी बुजुर्ग ने आपको एक पूरा रोड मैप दे दिया, और नॉट फॉर द मुस्लिम, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए। उन्होंने आपने फरमाया कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स जो है वो खाली मुस्लिम्स के लिए नहीं, तमाम पूरे वर्ल्ड के लिए जो है वो आपको मुख्तलिफ प्रोविजंस प्रोवाइड करती है। इसी तरह इस्लामिक फाइनेंस में रिसर्च डेवलपमेंट की बात है, तो अकेडमिया की खाली रिसर्च नहीं, शरिया कंसर्न बहुत है। हमारे मदारिस के उस पर जिम्मेदारी बनती है इस तरह की कि जैसे मैंने कहा कि एक तो अपने क्यूरिकुलम में इस्लामिक फाइनेंस को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, इस्लामिक फिनटेक को, एआई को, आईटी को, और सबसे बड़ी लैंग्वेज बेयरर्स अगर है इंग्लिश को, इन सबको शामिल करना चाहिए। तो कोई वक्त इंशाल्लाह दूर नहीं है कि आप अल्लाह पे तवक्कल करके एफर्ट करें, तो अल्लाह बिल्कुल कामयाबी नसीब फरमाएगा। तो आखिर में सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। शुक्रिया।